Dear students, welcome to Chronicle IS. I am Priyanshu and we are discussing UPSC mock test papers of GS paper 2. So we have discussed till question number 15 or 16 and in this video we will proceed on to question number 17. Question number 17 जो टेस्ट पेपर का है हम उसकी चर्चा करेंगे और the question is corporate foundations have become a crucial component. Corporate foundations have become a crucial component of development industry. Now keep a watch on the terms. Development industry, influencing government policies and resource allocation. Analyze with suitable examples. Now you have to analyze this statement and also include suitable examples. What is the meaning of analyze? The meaning of analyze is to break the issue into different parts, into different parts. What are various parts of the issue or what are various aspects of the issue? So you have to analyze this statement, means you have to break down the statement into various aspects and need to mention examples. इसमें आपको example देते हुए analyze करना है. Now you are clear with the डायरेक्टिव वर्ड, ठीक है. तो एनालाइज है तो आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है. कमेंट होता है, एग्जामिन होता है तो दूसरे तरीके से आगे बढ़ते, जो कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में डायरेक्टिव वर्ड्स के कंटेक्स्ट में बात की है. अच्छा, हिंदी में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. कॉर्पोरेट फाउंडेशन सरकारी नीतियों और संसाधन आवंटन को प्रभावित कर विकास उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक बन गए. उपयुक्त उदाहरणों के साथ विश्लेषण कीजिए. 250 शब्दों में उत्तर लिखना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन का मेन आइडिया क्या चीज है? क्वेश्चन का मेन आइडिया कॉर्पोरेट फाउंडेशन है. इट इज वेरी क्लियर. तो कॉर्पोरेट फाउंडेशन से हमें अपनी बात को शुरू करनी पड़ेगी. दूसरी चीज क्या है कि आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. आंसर का स्ट्रक्चर हम लोग सिंगल सब हेडिंग में भी बात कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रिसोर्स एलोकेशंस को हम बाद में डील कर सकते हैं. कॉर्पोरेट फाउंडेशंस बिकमिंग अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट इंडस्ट्री, इसको हम पहले सब पार्ट में डील कर सकते हैं. आपको जो स्ट्रक्चर अच्छा लगे आप उसको अपना सकते हैं. ओके, तो आप इन दोनों को सेपरेटली भी डील कर सकते हैं. दैट हाउ इट हैज बिकम अ क्रूशियल कंपोनेंट फॉर डेवलपमेंट इंडस्ट्री. And in the second subpart, you can deal with how does it influence government policy making and resource allocation, or otherwise you can deal it in a single subheading also. Okay. Now, as we have identified the theme of the question, okay, so that is corporate foundation. Corporate foundations. What are corporate foundations? So in the introduction to the answer, your answer, you can write regarding corporate foundations, you can define them, or there is another important term used in the question में एक अन्य महत्वपूर्ण term का इस्तेमाल किया गया है, that is development industry. So you can also give an insight on the development industry. Okay, so you can also give an insight on the development industry. What does development industry mean? What does it include? Okay, so that will be a good start to your answer. Now, corporate foundations क्या होते हैं? Corporate foundations which are philanthropic organizations rooted in corporate firms or promoted by corporate firms, supported by corporate firms, उन्हें हम corporate foundations कहते हैं. जो corporate firms होते हैं वो अपनी CSR एक्टिविटीज के लिए, corporate social responsibility को fulfill करने के लिए या philanthropic purposes से ऐसे corporate trust और foundations establish करते हैं to work for the public cause, for upliftment of people, to work in welfare and developmental programs. तो उन्हें हम corporate foundations कहते हैं. तो आप इनको डिफाइन करके भी अपनी बात को शुरू कर सकते हैं. एक बात तो ये हो गई. दूसरा, अगर आपको इनके रिस्पेक्ट में कोई फैक्ट पता है, कोई डेटा पता है, कोई स्टैटिस्टिक पता है, लेटेस्ट रिपोर्ट है कोई, तो आप उसकी चर्चा कर सकते हैं. जैसे यदि हम बात करें इंडिया फिलेंथ्रोपी रिपोर्ट 2024 की, तो इंडिया फिलेंथ्रोपी रिपोर्ट 2024 ने कहा, इंडिया philanthropy report 2024. See, these reports, mentioning these reports are considered very crucial in answer writing with respect to GS paper 2 and paper 3, paper 4 as well. So India philanthropy report 2024 ने क्या कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में
फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया में जो फिलेंथ्रोपिक फाइनेंस था, द प्राइवेट फिलेंथ्रोपी, जो प्राइवेट फिलेंथ्रोपी थी, फिलेंथ्रोपी मतलब चैरिटी, फिलेंथ्रोपी मतलब जो प्राइवेट पार्टीज, इंडिविजुअल्स हो या फिर ट्रस्ट हो, फाउंडेशंस हो, कॉर्पोरेशंस हो, जो प्राइवेट फंड दान करते हैं देश के समाज के विकास के लिए, तो जो प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक फंड था, सो दैट इंक्रीज्ड बाय 10% इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू गो अप टू $15 बिलियन। $15 बिलियन का प्राइवेट फिलेंथ्रोपी इंडिया में आपको कंट्रीब्यूट किया गया था. सो दैट इज अ बिग अमाउंट कंसिडरिंग the private sector. And the second thing was the same report said that, a different report said that CSR funds, they accounted for 28,000 crore in financial year 2023. So you can also mention these important statistics. So corporate social responsibility के अंतर्गत भारत में वित्त वर्ष 2023 में 28,000 करोड़ CSR फंड के रूप में दिया गया था. So these are some fact sheets you can include in your introduction. Now the second approach what I told you, जो दूसरा मैंने आपको तरीका बताया उत्तर की भूमिका लिखने का, that is to define development industry. आप कहेंगे विकास उद्योग कैसे हो गया? विकास तो अपने आप में उद्योगों का विकास होता है, विकास कैसे एक उद्योग हो गया? So development as an enterprise, development as an activity, as a goal. Earlier it was considered to be the task of the government. पहले यह समझा जाता था कि विकास करने का जो कार्य है यह केवल सरकार का है, यह सरकार का उद्देश्य है, सरकार का यह कार्य है. लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हमारे जो सोसाइटी है उसमें परिवर्तन आया, जिस तरीके से गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स होता गया, चैलेंजेस कॉम्प्लेक्स होते गए, रिसोर्सेस स्कार्स होते गए, तो यह समझ में आया कि कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एफर्ट इज मोर रिक्वायर्ड. And thus came the idea of development industry, कि ये जो डेवलपमेंट है ये एक कलेक्टिव कोलैबोरेटिव इंटरप्राइज है. So we need to collect resources, we need to collectively use resources and to pursue the goal of development and to undertake the enterprise of development. All stakeholders must come together. So development industry is the concept of a collaborative approach to development and progress, and it includes. और जो विकास उद्योग है, अब आपको बात समझ में आ रही होगी, विकास उद्योग का अर्थ हुआ, उद्योग का क्या अर्थ होता है? इंडस्ट्री, इंटरप्राइज, मतलब फैक्ट्री कल कारखाना ही नहीं. इंडस्ट्री का अर्थ होता है टू मेक एफर्ट फॉर समथिंग, टू वर्क फॉर समथिंग. सो डेवलपमेंट एज अ कलेक्टिव एफर्ट इज डेवलपमेंट इंडस्ट्री. सो डेवलपमेंट इंडस्ट्री इट नाउ कंप्राइजेस गवर्नमेंट इज द पोल, इज द सेंटर, बट ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर, also trusts and charities, foundations, civil society organizations, okay, international organizations. So development industry, it comprises all these stakeholders for the collective task of development. इसे ही हम विकास उद्योग कहते हैं. बात आई समझ में? अच्छा, तो हम इस चीज से भी अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम क्वेश्चन के मेन जो इसका कंटेक्स्ट है वो क्या है? हैव बिकम अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज एंड एलोकेशंस. सो वी हैव टू एनालाइज. नाउ सी, वी विल मेक अ सिंगल सब हेडिंग. सो कॉर्पोरेट, यू कैन टेक बोथ सिंगल और डबल सब हेडिंग आंसर स्ट्रक्चर, वो मैंने आपको पहले बता दिया है. सो कॉर्पोरेट फाउंडेशंस एज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट इंडस्ट्री, as a crucial component of development industry influencing policies and allocations. So we can make a subheading like this, a single subheading, and let us see how it works. Okay, now we will keep on connecting the crucial importance or the crucial nature of corporate foundations with the allocations and the policy part. Then only we can do justice with a single subheading. अच्छा, पहली बात तो ये है कि these corporate foundations they are related to corporate firms. ठीक है, तो ये जो corporate foundations होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम गेट्स फाउंडेशन की बात करें, और वर्ल्ड वाइड नोन फाउंडेशन,
फॉर इट्स फिलैंथ्रोपिक एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। ओके, तो इनका जो रूट होता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, कॉर्पोरेट कंपनियों में होता है। वी नो दैट द गेट्स फाउंडेशन इज प्रमोटेड बाय बिल गेट्स। ओके, so who was the founder of Microsoft? Okay, now so these corporate foundations as they are rooted in corporate companies, so they have permanent endowments। इनके पास permanent endowments होते हैं। परमानेंट इंडोमेंट्स कहने का अर्थ हुआ कि इनके लिए इनके पास चैरिटेबल पर्पस के लिए परमानेंटली एलोकेटेड मनी होती है, या फिर परमानेंटली एलोकेटेड शेयर ऑफ रिसोर्सेस दे कंटिन्यूअसली फ्लो टू द फाउंडेशन फॉर चैरिटी एंड फिलैंथ्रोपिक पर्पस। ओके, सो दैट इज कॉल्ड इंडोमेंट्स, दैट इज असाइंड फॉर द रिसोर्स दैट इज असाइंड फॉर और एलोकेटेड फॉर चैरिटेबल पर्पस, चैरिटेबल और फिलैंथ्रोपिक पर्पस, चैरिटेबल पर्पस। इसीलिए इनके पास धन की कमी नहीं होती। सो देयर इज अ रेगुलर फ्लो ऑफ मनी एंड ड्यू टू दिस परमानेंट एंडोमेंट दीज कॉर्पोरेट फाउंडेशंस कैन हैव वेरी क्लियर लॉन्ग टर्म गोल्स, दे कैन परस्यू वेरी क्लियर लॉन्ग टर्म गोल्स। सो वो क्या कर सकते हैं कि वेरी क्लियर लॉन्ग टर्म गोल्स, तो वो बहुत स्पष्ट दीर्घकालिक योजनाएं बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं और उनको परस्यू करते हैं। और चूंकि उनके पास ये क्षमता होती है इसीलिए वो सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। सरकार की नीतियों को भी, सरकार को भी उन्हें साझेदार बनाना पड़ता है क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन होते हैं, निरंतर संसाधन होते हैं। और दूसरी चीज है कि चूंकि दे हैव परमानेंट एंडोमेंट्स एज वेल, दैट इज व्हाई दे आल्सो हैव अ रोल इन इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट एलोकेशंस टू अ पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है, तो जहां पर उनकी सहभागिता ज्यादा होती है तो सरकार को वहां संसाधन लगाने की कम जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बात करें तो उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने, अजीम प्रेमजी वी नो द वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, फाउंडर ऑफ विप्रो एंड अ वर्ल्ड वाइड इंडियन आइकन ऑल्सो पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ फिलैंथ्रोपी। अजीम प्रेमजी जिन्हें की फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशंस के लिए भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में जाना जाता है। सो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द एजुकेशन सेक्टर, और इनकी जो भूमिका रही है शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम इनका उदाहरण यहां पर दे सकते हैं। और हायर एजुकेशन पॉलिसीज को भी फ्रेम करने में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की लगातार भूमिका रही है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो कॉर्पोरेट फाउंडेशंस हैं, कॉर्पोरेट फाउंडेशंस हमने देखा कि कॉर्पोरेट कंपनियों में इनका जड़ होता है और इनका बिजनेसमैन से, हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ इनकी बहुत अच्छी नेटवर्किंग रहती है। इस कारण से सीनियर पॉलिटिशियंस और जो सीनियर पॉलिसी मेकर्स हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ इनकी समीपता होती है। सो दे हैव a closeness or we can say proximity to the senior politicians, senior bureaucrats, and by this individual networking, by this individual relationship and networking, they are able to influence government policies and allocations as well. तो हमें इस चीज को समझना होगा कि these corporate foundations, if we write CF in short, so these corporate foundations they have relationship with businesses, investors जो निवेशक हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। अब आप देखिए ये सभी जो हैं किसको प्रभावित करते हैं? सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं, पॉलिसीज को करते हैं। निवेशक किसको प्रभावित करते हैं? सरकारी आवंटनों को प्रभावित करते हैं, एलोकेशंस को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और इनका संपर्क किससे होता है? कॉर्पोरेट फाउंडेशंस का नेटवर्क इनसे होता है और इनका संबंध पॉलिटिशियंस से होता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, अपोजिशन पार्टी के हों। पॉलिटिशियंस हो गए, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हो गए, है ना, सीनियर सिविल सर्वेंट्स हो गए, दोज हु आर पॉलिसी मेकर्स। सो दस दे एक्ट एज अ क्लोज नेटवर्क और द वर्क एज अ क्लोज नेटवर्क एंड हेंस दे इन्फ्लुएंस पॉलिसीज एंड एलोकेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हम अपनी बात को जोड़ते हुए कह सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज ये है, देखिए हम अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। हमने एक तरफ तो बात की उनके फाइनेंशियल
कंडीशन की, फिर हमने बात की उनके पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक प्रॉक्सिमिटी की। अब तीसरी जो हम बात करने जा रहे हैं, सो व्हाट इज द काइंड ऑफ अरेंजमेंट दे इंटर विद द गवर्नमेंट। ये जो कॉर्पोरेट फाउंडेशन है ये सरकारों के साथ फॉर्मल अरेंजमेंट के साथ इंटर करते हैं, फॉर्मल एग्रीमेंट्स करके उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स तो होते नहीं इनके साथ एमओयू साइन किए जाते हैं जिसमें कि ज्वाइंट गोल्स सेट किए जाते हैं, ज्वाइंट रिसोर्सेस एलोकेट किए जाते हैं, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर कमिट करता है, सरकार फिर उसके लिए अपने रिसोर्सेस एलोकेट करती है और फिर उनके भी सुझावों को शामिल करते हुए नीतियों का निर्माण करती है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मल एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स के जरिए, फॉर्मल एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स के जरिए वो क्या करते हैं, एमओयूज के जरिए वो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, सरकार के वित्तीय आवंटनों को प्रभावित करते हैं। अगर हम इसके उदाहरण के रूप में बात करें तो आप देखेंगे कि गेट्स फाउंडेशन ने बिहार सरकार के साथ, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ एक 5 वर्षीय साझेदारी की घोषणा की थी विद गवर्नमेंट ऑफ बिहार, एंड दैट वाज नोन एज अनन्या पार्टनरशिप। That was known as Ananya Partnership. That was a 5-year-long partnership signed between the Gates Foundation and the government of Bihar, and it was aimed to improve the condition of health in Bihar, particularly of rural women. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार को लेकर यह 5 वर्षीय साझेदारी गेट्स फाउंडेशन और बिहार सरकार के बीच में की गई थी, जिसका नाम अनन्या साझेदारी और अनन्या पार्टनरशिप था। तो इस तरीके से वो सरकार का जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव है वो सेव करते हैं, वो पॉलिसी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, है ना, या सेट करने में भूमिका निभाते हैं। और जब पॉलिसी प्रायोरिटीज सेट होती हैं तो स्वाभाविक रूप से उधर वित्त का बहाव, द रिसोर्स फ्लोज इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए। अच्छा, चौथी जो बात है कि सी These corporate foundations, they are not corporate companies. आप ये मत समझ लीजिएगा कि कॉर्पोरेट फाउंडेशन कॉर्पोरेट कंपनीज के दबाव में काम करती हैं या उनके हिसाब से काम करती हैं। ये जो कॉर्पोरेट फाउंडेशंस हैं ये एक तरीके से इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती हैं अपनी पेरेंट कंपनी या जो एसोसिएटेड जो भी उनकी रूट कंपनी है उसके इंडिपेंडेंट काम करती हैं। सो दे हैव ऑटोनोमस एजेंडा, दे हैव ऑटोनोमस वे ऑफ वर्किंग। उनके काम करने का तरीका और उनका जो एजेंडा है वो स्वायत्त होता है, और ड्यू टू दैट ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंट वे ऑफ वर्किंग, ड्यू टू दैट ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंट वे ऑफ वर्किंग, इससे क्या होता है कि ये जो कॉर्पोरेट फाउंडेशंस हैं, कॉर्पोरेट फाउंडेशंस को पॉलिटिकली न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। पॉलिटिकली न्यूट्रल, ऐसा माना जाता है कि उनके जो एजेंडाज हैं वो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन नहीं हैं, और सरकारें तो बदलती रहती हैं, ऑफिशियल्स बदलते रहते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट फाउंडेशंस दे आर ट्रीटेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल इररिस्पेक्टिव ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द रेजिम, इन द गवर्नमेंट। ठीक है, सत्ताधारी दल कोई भी हो, एंड सो एज दे आर कंसीडर्ड पॉलिटिकली न्यूट्रल, इसीलिए उनका जो प्रभाव नीतियों के ऊपर है, पॉलिसीज के ऊपर है या रिसोर्सेज के ऊपर है, वह आसान होता है क्योंकि उन्हें पॉलिटिकली न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो बात आती है कि दीज कॉर्पोरेट फाउंडेशंस दे ब्रिंग द प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी। आप देखें कि चूंकि उनका रूट तो कॉर्पोरेट कंपनीज में है, तो उनके अंदर जो कार्य करने की शैली होती है, वर्क कल्चर होता है, दैट ऑल्सो हैज the private sector, the same private sector efficiency, and this private sector efficiency, when they collaborate and partner with the government, they bring the same efficiency and work culture. वो जब सरकार के साथ साझेदारी करते हैं तो उसी वर्क कल्चर को अपने साथ लेकर आते हैं, उसी दक्षता को लेकर आते हैं और एफिशिएंसी को लेकर आते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो सार्वजनिक संसाधन है, पब्लिक रिसोर्सेस हैं, उनकी भी बचत होती है, और जो संसाधन बचता है वो कहीं पर अलग लगाया जा सकता है, सो दैट कैन बी डिप्लॉयड एल्सवेयर। तो इस तरीके से वो संसाधनों की सेविंग्स को, संसाधनों की बचत को प्रमोट करते हैं। ओके, सो प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी
and due to this efficiency they promote the saving of public resources, promote saving public resources which can be allocated elsewhere, promote saving public resources. ठीक है, इस तरीके से आपको कनेक्ट करते हुए अपनी बात को कहते जाना है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप देखिए कॉर्पोरेट फाउंडेशंस दे हैव दैट रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, दे हैव दैट रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी. उनके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता होती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स तो उनके द्वारा प्रमोटेड होती है ना, तो इसीलिए उनमें रिस्क टेकिंग कल्चर होता है. इनोवेशन की क्षमता होती है और उनके पास इनोवेशन करने के लिए संसाधन भी होते हैं. बेस्ट प्रैक्टिसेस वो अडॉप्ट कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस स्टडी करके पूरे दुनिया भर में वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं. सो ड्यू टू दिस रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, इनोवेटिव एबिलिटी, ड्यू टू दी ability to, due to the capacity to adopt best practices and to scale them at large, तो सरकारें उनके साथ कोलैबोरेट करती हैं and in the process due to their strength they influence the government policy decisions and at the same time allocations. Okay? अच्छा, तो हमने क्या बात की कि जो कॉर्पोरेट फाउंडेशंस हैं, कॉर्पोरेट फाउंडेशन क्या करते हैं? so they are risk takers, so they are रिस्क टेकर्स. दे ऑल्सो ब्रिंग इनोवेशन, अपने साथ नवाचार भी लेकर आते हैं. तीसरी चीज है कि दे ऑल्सो ब्रिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, द डोमेस्टिक बेस्ट प्रैक्टिसेस एज वेल एज द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस. अब इनके कारण जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनकी क्षमता है, दिस कैपेसिटी, सो गवर्नमेंट कंसीडर्स इट अ वेरी एडवांटेजियस कैपेसिटी एंड इन द प्रोसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज and allocations are influenced, and in the process government policies and allocations are influenced. अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि पिरामल फाउंडेशन, क्योंकि आपको उदाहरण भी इसमें शामिल करना है, तो पिरामल फाउंडेशन ने कई राज्य सरकारों के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हेल्थ इंटरवेंशंस को बढ़ावा देने का पार्टनरशिप किया था. तो सरकारें क्या करती थी, विशेषकर राज्य सरकारें, कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों में से कई ने पिरामल फाउंडेशन के साथ साझेदारी की थी. और इस तरीके से हेल्थ सेक्टर में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिला. तो ये पॉलिसी में परिवर्तन है या नहीं है, जहां पर कि सरकारें हर चीज को डिजिटलाइज करने में शुरुआत में हिचकती थी. तो इन कॉर्पोरेट फाउंडेशंस के प्रभाव के बाद उनमें ये एक प्रवृत्ति जागी कि हम सेवाओं तक लोगों की पहुंच को डिजिटल माध्यम पर और आसान बना सकते हैं. ठीक है, सो हियर वी कैन राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ पिरामल फाउंडेशन, राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ पिरामल फाउंडेशन कोलैबोरेटिंग विद वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ओवर द इशू ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. डिजिटल प्लेटफॉर्म, सो श्योरली जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता है तो उसमें करप्शन भी कम होता है ना, उसमें करप्शन कम होता है. द बेनिफिशियरीज दे गेट द इंटाइटलमेंट्स डायरेक्टली, सरकार की भी जो एलोकेशन है उसको ट्रैक करना आसान होता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. ओके, नाउ कैन वी एनालाइज फर्दर? वी कैन सी दैट, देखिए अब बात यह है कि जो कॉर्पोरेट फाउंडेशंस हैं वो भी काफी समय से इस डेवलपमेंट इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, 20 साल से, 30 साल से, एंड मच लॉन्गर. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके पास भी कई दशकों का एक अनुभव हो जाता है, उनके पास भी विशेषज्ञता हो जाती है, क्योंकि हर कॉर्पोरेट फाउंडेशन हर क्षेत्र में काम नहीं करता. सो देयर आर आल्सो सेक्टर स्पेसिफिक कॉर्पोरेट फाउंडेशंस. तो उनके पास जो ये दक्षता आ जाती है, ये जो अनुभव आ जाता है, दैट इज ऑफ मच इमेंस हेल्प टू द गवर्नमेंट इन डिटरमाइनिंग पॉलिसीज, इन डिटरमाइनिंग एलोकेशंस. और कॉर्पोरेट फाउंडेशंस जब इतने समय तक समाज के साथ रह के काम करते हैं, सो दे डेवलप डीप कनेक्शंस विद द लोकल कम्युनिटीज. स्थानीय समुदायों के साथ भी उनके संबंध काफी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके उत्थान के लिए कार्य करते हैं. ओके, सो नाउ ड्यू टू दिस द गवर्नमेंट ऑल्सो वैल्यू द इनसाइट्स एंड सजेशंस, इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय दीज कॉर्पोरेट फाउंडेशंस एंड इनकॉर्पोरेट देम in the policy making and allocations. So we can write कि corporate foundations, they have decades of experience, they have decades of experience. At the same time, while a long duration of their work, they develop deep
connections with local communities. So they develop deep connections with local communities. Deep connections with local communities, है ना। तो इसके कारण वो जो इंसाइट देते हैं सरकार को, उससे पॉलिसीज और एलोकेशंस दोनों प्रभावित होती हैं। ओके, नाउ यू जस्ट कंसीडर दैट व्हाट इंपॉर्टेंट, व्हाट क्रूशियल रोल दे हैव इन द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, है ना। अच्छा, दूसरी चीज आगे बढ़ते हुए यदि हम बात करें, द नेक्स्ट पॉइंट, सो सी द डेवलपमेंट इंडस्ट्री that works on dialogue, that works on collaboration, and for collaboration you need dialogue, है ना। डेवलपमेंट इंडस्ट्री किस पर काम करती है? डेवलपमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर काम करती है। कोलैबोरेशन कैसे हो पाएगा? कोलैबोरेशन डायलॉग के माध्यम से संभव होता है, डायलॉग के माध्यम से। तो ये कॉर्पोरेट फाउंडेशंस क्या करते हैं? ये डायलॉग फैसिलिटेट करते हैं बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इन द डेवलपमेंट इंडस्ट्री। ओके, सो दे ऑर्गेनाइज मीटिंग्स, दे ऑर्गेनाइज फोरम्स, है ना। वो फोरम्स आयोजित कराते हैं, मंच प्रदान करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जिसमें कि नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं और पॉलिसी पर्सपेक्टिव को वाइडेन करते हैं, है ना। तो एक्सपर्ट पॉलिसी मेकिंग के लिए वो डायलॉग करते हैं एंड दस दे फॉर्म अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द डेवलपमेंट इंडस्ट्री। इसीलिए सरकारों को भी लगता है कि इनसे और बेहतर पार्टनरशिप की जानी चाहिए। एंड व्हेन दे गेट इनटू सच डायलॉग्स, so certainly policies, resources, all these aspects are going to get influenced. ठीक है, बात आ गई समझ में। तो अब हम इसमें कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, किस तरीके से बात को रखें? क्या हम इसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं? चूंकि हमने विश्लेषण किया है, तो क्या हम इसमें और बेहतर पार्टनरशिप के लिए कॉर्पोरेट फाउंडेशंस और गवर्नमेंट के बीच में, कॉर्पोरेट फाउंडेशंस और गवर्नमेंट के बीच में, या फिर डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अदर स्टेक होल्डर्स के बीच में पार्टनरशिप को इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं? सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि कॉर्पोरेट फाउंडेशंस को इन सब के बावजूद भी एक डीप मिसट्रस्ट से देखा जाता है ना। उनके ऊपर एक डीप मिसट्रस्ट होता है क्योंकि उनका रूट कॉर्पोरेट कंपनीज में है, तो लगता है कि इनका कुछ अपना एजेंडा होगा, ये प्रॉफिट मोटिव से या किसी और कारण से ये यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो दिस डीप डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट फाउंडेशन should not be there. So there should be a sense of trust, more trust should be developed between the various stakeholders of the development industry including corporate foundations. दूसरी चीज है कि जब ये कॉर्पोरेट फाउंडेशन पार्टनरशिप करते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो इनके समक्ष चुनौती होती है कि सरकारी प्रक्रियाओं में लचीलापन कम है। गवर्नमेंट प्रोसेसेस आर लेस फ्लेक्सिबल। उसके कारण इनका जो वर्क कल्चर है वो प्राइवेट सेक्टर वर्क कल्चर है, सरकारी प्रक्रियाएं उसमें उतना लचीलापन नहीं है। तो इस कारण से दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं, एक तो इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रस्ट हो गया, दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि जो सरकारी प्रक्रियाएं हैं, द गवर्नमेंट प्रोसेसेस, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें लानी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, हमें इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी लानी चाहिए। अच्छा, और कुछ बात है। अब जैसे हम देखें कि जो सरकारों के तौर तरीके होते हैं काम करने के, तो उसमें एक तरीके से ये आपको बातें सामने आती हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव होता है। तो इन सुझावों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं, है ना। उसमें हम ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट फाउंडेशंस दे कैन प्रूव टू बी मोर इफेक्टिव टूल in the development industry or effective partners in development industry if there is more trust with the government and there is more flexibility in the government processes. तो हम इस तरीके से अपनी बात को कंक्लूड करते हुए लिख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, जो अगला प्रश्न है, what do you understand by the saturation approach adopted by the government of India for inclusive human resource development and social justice? Discuss in the particular context of welfare schemes for the scheduled tribes. So you have to discuss in the particular context of welfare schemes for the scheduled tribes, STs. Answer in 250 words and the question is of 15 marks. Okay, so now let us see what it reads in Hindi. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के लिए, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए परिपूर्णता दृष्टिकोण, सैचुरेशन अप्रोच से आप क्या समझते हैं?
अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए कल्याणकारी योजनाओं के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए, और उत्तर 250 शब्दों में आपको लिखना है। तो पेपर 2 जनरल स्टडीज का that also includes topic of governance, and you must be very careful with respect to the core areas of governance. If there is any change or any adoption of any core policy approach by the government, you must be very well versed in that. कहने का अर्थ यह है कि सरकार ने यदि अपने नीति निर्माण के संदर्भ में, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों के संदर्भ में अगर किसी पॉलिसी अप्रोच को अपनाने की बात की है, तो एक सिविल सेवा परीक्षार्थी होने के नाते आपको उसको जानना आवश्यक है। ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि सरकार ने इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए सैचुरेशन अप्रोच को अपनाया है। आप इससे क्या समझते हैं, और आपको अनुसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ में विवेचना करनी है, मतलब इधर उधर नहीं, आपका जो फोकस है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं उसके विशेष संदर्भ में करना है। तो अब इसमें इंट्रोडक्शन हम कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में बात किसकी की गई है? सैचुरेशन अप्रोच की बात की गई है। ओके, सो हिट द बुल्स आई, एज आई ऑलवेज से, saturation approach. Best way is to start with the saturation approach. You can define either saturation approach or you can tell about the announcement of adoption of saturation approach by the government. So the government made an announcement to adopt the saturation approach. तो आप दोनों में से कोई तरीका अपना सकते हैं, या तो आप saturation approach को define कर दीजिए कि ये है क्या, ठीक है, प्रश्न आपको उसी को विस्तार से विवेचना करने की बात कर रहा है। और दूसरा कि अनाउंसमेंट जो सरकार ने किया है, कब किया है, किस संदर्भ में किया है, आप वो बता दीजिए, ताकि एग्जामिनर को आंसर पढ़ते ही समझ में आ जाए कि आपको उस विषय का स्पेसिफिक ज्ञान है। यू आर अवेयर ऑफ द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द इशू इन क्वेश्चन। ठीक है, सो सैचुरेशन अप्रोच क्या है? व्हाट इज सैचुरेशन अप्रोच? So it is a strategy by the government to include all eligible beneficiaries, to cover all eligible beneficiaries under government welfare programs. सिंपल सी बात है कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जितने भी योग्य लाभार्थी हैं सभी को शामिल करने की रणनीति ही सैचुरेशन अप्रोच है। मतलब नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। द बेसिक आइडिया इज नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी है उसको कार्यक्रम के अंतर्गत लाकर सरकारी लाभ पहुंचाया जाए, यही सैचुरेशन अप्रोच है। मतलब जो सरकारी योजनाएं हैं वह बेनिफिशियरी के रेस्पेक्ट में सैचुरेट कर जाएं, मतलब अब उससे अधिक और किसी को उसमें इंक्लूड नहीं किया जा सके। सो दैट इज द सैचुरेशन अप्रोच। इज इट क्लियर? सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन गवर्नेंस वेयर it primarily deals with expanding the benefits of welfare measures by the government. Okay, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि सरकार ने ये घोषणा कब की थी, आप इसको भी बताकर इंट्रोडक्शन में अपनी बात लिख सकते हैं। तो आपको पता हो कि सैचुरेशन अप्रोच को अपनाने की बात भारत सरकार ने 2024-25 के बजट में, इन द यूनियन बजट 2024-25, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेड डाउन 9 थीमेटिक गोल्स। भारत की वित्त मंत्री ने 9 थीमेटिक गोल्स ले डाउन किया था बजट में। 9 थीमेटिक गोल्स ऑफ द बजट, यूनियन बजट 2024-25, ठीक है, पिछले साल की बात, 2024-25। और यूनियन बजट 24-25 में उन्होंने अनाउंस किया कि इन 9 थीमेटिक गोल्स में से एक थीमेटिक गोल है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए सैचुरेशन अप्रोच अपनाने जा रहे हैं। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। नाउ लेट अस सी हाउ टू राइट डाउन द आंसर। दीज वेर द 2 वेज, ये 2 तरीके थे जिससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ डायरेक्टली सैचुरेशन अप्रोच का हम सब हेडिंग बनाएंगे, सैचुरेशन अप्रोच फॉर इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ओके, to write our answer we will make a single subheading, saturation approach for inclusive human resource development and social justice, human resource development
and social justice. Social justice. So we will make it a single subheading. Now see, पहली बात तो क्या है कि सैचुरेशन अप्रोच की जो हमने बात की, दिस सैचुरेशन अप्रोच इट इंक्लूड्स ऑल एलिजिबल बेनिफिशियरीज. हमने क्या बात की? इट इंक्लूड्स ऑल एलिजिबल बेनिफिशियरीज और इट एम्स टू कवर all eligible beneficiaries under government programs and schemes. All eligible beneficiaries. अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो आप देखिए कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इसमें फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने का प्रयास किया गया है और उसमें एलिजिबल बेनिफिशियरीज का जो ब्रैकेट है वो मैक्सिमम पॉसिबल वाइडेस्ट बनाया गया है. So it covers almost, you can say, 2/3 of the population, almost 2/3 of the population, or almost 60% of the population. It covers around 80 crore people. So प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. So programs like this, they follow the saturation approach with coverage of at least 80 crore people with focus on tribal population. So there is the focus on tribal population. आदिवासी जनसंख्या पर ध्यान अधिक डालते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लगभग 80 करोड़ पॉपुलेशन तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की गई है. तो इसमें जितने एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं सभी शामिल हैं. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात आप देखिए, द सेकेंड थिंग, हाउ इट लीड्स टू इंक्लूसिव ह्यूमन, हाउ इट कैन बी helpful for inclusive human resource development, what we understand by saturation approach. So our understanding of saturation approach is that it provides comprehensive coverage that we just discussed. So when it provides comprehensive coverage, जब ये समग्र कवरेज को सुनिश्चित करता है, व्यापक कवरेज को सुनिश्चित करता है, तो यहां पर कोई एक्सक्लूजन एरर नहीं है. यहां पर कोई एक्सक्लूजन एरर किसी बेनिफिशियरी के लिए नहीं है. देयर इज नो एक्सक्लूजन एरर. एक्सक्लूजन एरर का अर्थ हुआ कि कोई भी योग्य लाभार्थी योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं होगा, कोई भी योग्य लाभार्थी योजना से बाहर नहीं होगा. ठीक है, बाहर हो जाना एक्सक्लूजन एरर है, किसी अयोग्य लाभार्थी को योजना में शामिल कर लेना इंक्लूजन एरर है. सो दीज आर टर्म्स विच आर यूज्ड इन पॉलिसी फ्रेमवर्क्स एंड यू मस्ट बी वेरी क्लियर विथ रिस्पेक्ट टू दीज टर्म्स. ठीक है, इंक्लूजन एरर क्या है? किसी अयोग्य इनएलिजिबल बेनिफिशियरी को योजना के अंतर्गत शामिल करके लाभ पहुंचाना, that is inclusion error. Exclusion error क्या हुआ? To exclude an eligible beneficiary and deprive the benefits of government program and policies, schemes. तो comprehensive coverage जहां पे होगा तो वहां किसी को बाहर करने की बात ही नहीं है, क्योंकि सभी उसमें शामिल है ना. अगर जब सभी को लाभ मिलना है, सभी कार्यक्रमों के और योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे लाभार्थी, तो कोई बाहर होने का किसी का विषय ही नहीं उठता है. सो देयर इज नो एक्सक्लूजन एरर. अब अगर हम इसमें उदाहरण की बात करें, जैसे प्रधानमंत्री वंधन योजना, जनजातीय आदिवासियों के लिए ये योजना लाई गई है, विशेषकर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से संबंधित आजीविका को मजबूत बनाने के कंटेक्स्ट में. माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और प्रोड्यूस, दैट इज MFP. तो आदिवासियों की आजीविका में विकास के लिए या उसको बेहतर बनाने के लिए देश भर में 80,000 से भी ज्यादा, तो ये देश भर में जितने भी राज्य हैं उसमें सभी आदिवासी जनसंख्या को कवर करने वाली योजना है. तो इसमें देश भर में 80,000 से भी ज्यादा वन धन केंद्र की स्थापना करके, वन धन विकास केंद्र की स्थापना करके सभी आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. तो ये सैचुरेशन अप्रोच का एग्जाम्पल है, जिसमें कि कोई बेनिफिशियरी बाहर नहीं है ना. तो हम इसकी बात कर सकते हैं. अच्छा, तीसरी बात यह हो गई कि टेलर मेड योजनाएं बनाई जा रही हैं. टेलर मेड योजनाएं वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए. तो सैचुरेशन अप्रोच में यह होता है कि जो टारगेटेड बेनिफिशियरी है दैट इज वेरी क्लियर. सैचुरेशन अप्रोच में कोई एम्बिगिटी नहीं है. जो टारगेट बेनिफिशियरी है, ओके, सो यू हैव टू बेनिफिट द शेड्यूल्ड ट्राइब, सो इट इंक्लूड्स ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब. देयर इज नो कंफ्यूजन ओवर दैट, देयर इज नो एम्बिगिटी ओवर दैट. So once you have identified the target group, then you can make tailor-made
यू कैन मेक टेलर मेड, मतलब उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फिर सरकार योजनाओं का निर्माण कर सकती है। तो सैचुरेशन अप्रोच से हम यह समझते हैं कि यह बेनिफिशियरी ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत लाभदायक है, यह स्पष्टता लाता है, और दूसरी चीज कि फिर टेलर मेड स्कीम के जरिए योजनाओं का लाभ पहुंचाकर समाज में एक इक्विटेबल सोसाइटी स्टैब्लिश करने का प्रयास किया जाता है ना। और सैचुरेशन अप्रोच अपनाकर हम विकास का लाभ वाइडेस्ट पॉसिबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन तक पहुंचा सकते हैं। तो सैचुरेशन अप्रोच का डायरेक्ट रिलेशन है डेवलपमेंट आउटकम से, जिसमें कि हम टेलर मेड स्कीम्स के जरिए व्यापक जनसंख्या तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उनका विकास कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम सैचुरेशन अप्रोच के संबंध में अपने अंडरस्टैंडिंग को ले डाउन करेंगे। अच्छा, उसी तरीके से बात करूं, चूंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि यू हैव टू डिस्कस इन द लाइट ऑफ वेलफेयर मेजर्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अभी जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई थी। धरती आबा, जो कि बिरसा मुंडा को कहा जाता है, तो धरती आबा के नाम पर यह जनजातीय कल्याण योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ग्राम उत्कर्ष अभियान पिछले साल शुरू किया गया 2 अक्टूबर 2024 को। गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया। ओके, सो लॉन्च किया गया। अब ये जो योजना लॉन्च की गई, आप इसमें देखिए कि जितनी देश भर में इसके अंतर्गत 5 करोड़ आदिवासी जनसंख्या को कवर करने की ये योजना है। 5 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन, 5 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन, एंड इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम। तो 63,000 जो ट्राइबल विलेजेस हैं उसके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ये योजना है। 63 करोड़ 63,000 ट्राइबल विलेजेस के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये कार्यक्रम, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कार्यक्रम। अब इसके अंतर्गत सभी लोग आते हैं और लगभग इसके अंतर्गत आपको 79,000 करोड़ का आउटले दिया गया है। सो वाइडेस्ट पॉसिबल कवरेज का प्रयास किया गया है। तो आप इस तरीके से सैचुरेशन अप्रोच को यहां पर इलस्ट्रेट कर सकते हैं। अच्छा, पांचवी बात यह है कि अब सरकार क्या कर रही है, सैचुरेशन अप्रोच को जब सरकार ने अपनाया है तो सैचुरेशन अप्रोच के जरिए क्या और कल्याणकारी योजनाओं को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमें वाइडेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन को या फिर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को कवर करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं लानी पड़ेंगी। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भी कल्याण को ध्यान में रखते हुए सैचुरेशन अप्रोच सरकार ने अपनाते हुए कई नए ऐसे कल्याणकारी योजनाओं को, जिनका की कंप्रिहेंसिव कवरेज हो, उसको सरकार लेकर आई है। जैसे अभी हमने क्या बात किया कि सैचुरेशन अप्रोच से क्या करना है, कंप्रिहेंसिव कवरेज करना है, कंप्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन और सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। उसके लिए हमें क्या जरूरत होगा, मोर नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स टू इंश्योर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। कैसे होगा, जब तक हम अधिक कल्याणकारी मोर नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, तभी तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। वेलफेयर स्कीम्स, ओके, मोर नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। ठीक, तो अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन, यह योजना भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए शुरू की गई। और पीएम जनमन के अंतर्गत क्या है, पीएम जनमन के अंतर्गत आप देख लीजिए कि रोड कनेक्टिविटी की बात की गई है, आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना करने की बात की गई है ना आदिवासी बहुल इलाकों में, और उसके बाद स्कूल्स एस्टैब्लिश करने की बात की गई। तो इस तरीके से और नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स हमें चाहिए ताकि हम जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसको कवर कर सके। तो सैचुरेशन अप्रोच में फिर वेलफेयर स्कीम्स के नंबर में भी वृद्धि लानी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की। नाउ सैचुरेशन अप्रोच इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मल्टी सेक्टोरल अप्रोच इन गवर्नेंस, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच इन गवर्नेंस।
अभी जैसे हमने शुरुआत में ही बात की कि इसका उद्देश्य क्या होता है, सैचुरेशन अप्रोच का कम्प्रिहेंसिव कवरेज है ना, कि सरकारी योजनाओं का लाभ आपको वाइडेस्ट पॉसिबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन तक लेके जाना है ना, टारगेटेड पॉपुलेशन तक। तो अब आपको अलग अलग क्षेत्रों में कई विकास योजनाएं चल रही हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में चल रही हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में चल रही हैं, हेल्थ के सेक्टर में चल रही हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में चल रही है ना, सामाजिक अवसंरचना के क्षेत्र में चल रही है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इन दिस कंटेक्स्ट अगर हम बात करें तो कवरेज के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, सैचुरेशन अप्रोच अपनाते हुए कवरेज के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की जरूरत है, ताकि योजनाओं में डुप्लीकेशन ना हो। देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ स्कीम्स, ओके, देयर इज नो कंफ्यूजन ओवर द रोल्स ऑफ फंक्शनरीज की भूमिकाओं में कोई कंफ्यूजन ना हो। सो दैट इज व्हाई वी नीड अ कोऑर्डिनेटेड एंड मल्टी सेक्टोरल अप्रोच व्हेन वी सी थ्रू द लेंस ऑफ सैचुरेशन, ओके। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन वी सी कि सोशल जस्टिस इंश्योर करने में या ह्यूमन डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट इंश्योर करने में एक जो बड़ी बाधा आती है वो है गैप की, जो डेटा गैप है, ओके। सो दिस डेटा गैप इट प्रूव्स एज ए बैरियर, इट क्रिएट्स अ बैरियर इन इंश्योरिंग सोशल जस्टिस। चूंकि अगर आपके पास आंकड़े नहीं है तो आप बेनिफिशियरी की पहचान कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन सैचुरेशन अप्रोच क्या करता है, इस चीज को एलिमिनेट करता है। इस चीज को एलिमिनेट करने के बावजूद भी जो आपको सरकारी कार्यक्रमों या योजनाओं के संबंध में आंकड़ों की आवश्यकता है उसको ये स्ट्रीमलाइन करता है। सो सैचुरेशन अप्रोच इट ऑल्सो ब्रिंग्स अ डाटा ड्रिवन मॉनिटरिंग। अब सैचुरेशन अप्रोच के जरिए अगर कंप्रिहेंसिव कवरेज की जाएगी तो उसके मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था करनी होगी, एंड देयर मस्ट बी अ डाटा ड्रिवन मॉनिटरिंग। आज के समय में तो डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग की बात की जाती है। सो एंड इफ यू सी दैट इन कंटेक्स्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड इन एन ओवरऑल कंटेक्स्ट, भारत सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेकर भारत सरकार आई, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब आकांक्षी जिलों की ये जो कार्यक्रम थी वो देश भर के जो भी अति पिछड़े जिले हैं उनमें सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने का प्रयास किया गया था। तो टोटल 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे। नीति आयोग के द्वारा टोटल 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की गई थी, और इन 112 डिस्ट्रिक्ट्स में 41 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसपे कि ट्राइबल पॉपुलेशन मोर देन 50% है, ओके। सो यू कैन से दैट विद इन ए प्रोग्राम ऑल्सो, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए केवल स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनाकर तो जरूरी है ही, लेकिन किसी एक प्रोग्राम के अंतर्गत भी, वाइडर पॉपुलेशन के लिए एक प्रोग्राम के अंतर्गत भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर फोकस करते हुए सैचुरेशन अप्रोच को अपनाया जा सकता है। मतलब जहां जहां ट्राइबल बहुल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां जहां भी आपको आदिवासी बहुल जिले हैं, उन सभी जिलों को अति पिछड़े जिलों के लिए जो कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम है उसके अंतर्गत शामिल किया गया था। तो ये एक अप्रोच शो करता है गवर्नमेंट का कि दे आर मोर कमिटेड टुवर्ड्स encompassing and covering a larger section of population and bringing it to the fold of government schemes, ठीक है। अच्छा, तो अब हम अपने आंसर को कैसे हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्या हम बात कर सकते हैं कंक्लूजन में। नाउ सी, कंक्लूजन भी हमारा क्वेश्चन के ही कंटेक्स्ट में होना चाहिए। तो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट सैचुरेशन अप्रोच को लेकर है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर को लेकर है, इन कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो अगर हम पूरे बात का निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन का क्या अर्थ होता है, निष्कर्ष, उत्तर का निष्कर्ष। अगर हम पूरे बात का निष्कर्ष निकालें तो सैचुरेशन अप्रोच किस चीज का प्रयास कर रहा है, सैचुरेशन अप्रोच इज वर्किंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सेस। सैचुरेशन अप्रोच इज वर्किंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल एक्सेस। ये सार्वजनिक सुगमता, सार्वजनिक पहुंच, सरकारी योजनाओं की सार्वजनिक पहुंच को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है सबसे पहले। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ये आपको प्रायोरिटीज सेट करने में हेल्प करता है। एज आई टोल्ड यू दैट इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज, सो इट इज easy to set your priorities and targets, clear targets.
सो सैचुरेशन अप्रोच थ्रू यूनिवर्सल एक्सेस, एक तो यूनिवर्सल एक्सेस की बात हो गई, और दूसरा कि कॉम्प्रिहेंसिव गोल्स, इसके जो गोल्स हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लियर गोल्स, कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लियर गोल्स। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम निष्कर्ष में बता सकते हैं कि निष्कर्ष में यूनिवर्सल एक्सेस को ये प्रमोट करता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लियर गोल सेट करता है, और इनके माध्यम से यह शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, या हम कहें कि लार्जर पॉपुलेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस, इसकी जो परस्यूट है, इसको जो एक प्राप्त करने की प्रक्रिया है, इसको एक्सेलरेट करेगा। सो टू समराइज वी कैन से that saturation approach with its universal access and clear priorities, it will accelerate the goal of human resource development and ensuring social justice in India। ये बात कहते हुए हम उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो टर्म बेस्ड क्वेश्चंस हैं, खासकर पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस में, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए हमने इसे मॉक टेस्ट पेपर में शामिल किया है, ताकि जो कोर गवर्नेंस के कंसेप्ट्स हैं और जो कोर गवर्नेंस में इमर्जिंग जो एस्पेक्ट्स हैं, उसके विषय में आपकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो आपसे मुख्य परीक्षा में संभावित रूप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इट डील्स विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। We know that in GS paper 2 we also have to study about international institutions, agencies, bodies, okay? And these days, or we can say in the last previous year, the International Court of Crime has been much in news. So we have taken International Court of Crime and included in the question paper. So let us see question number 19. So there is no specific global treaty addressing crimes against humanity. Okay. So how does the Rome Statute of the International Criminal Court, how does the Rome Statute of the International Criminal Court define crime against humanity? So this is the first sub part of the question. Okay, this notwithstanding the statement or the context of the question. The second sub part of the question is, this is the first sub part of the question. The second sub part of the question is with tail word or directive word evaluate. Evaluate the need for such a treaty to prevent and punish these crimes. Okay, so this is the second sub part of the question. You have to answer in 250 words and the question is of 15 marks. हिंदी में क्वेश्चन को देखते हैं। मानवता के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट वैश्विक संधि नहीं है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC का रोम संविधि मानवता के विरुद्ध अपराध को कैसे परिभाषित करता है? पहला तो सब पार्ट ये हो गया आपको, मानवता के विरुद्ध अपराध को कैसे प्रभावित करता है। इन अपराधों को रोकने और दंडित करने के लिए ऐसी संधि की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, आपको मूल्यांकन करना है। तो पहला आपसे जो सब पार्ट है वो सीधा पूछ रहा है कि रोम स्टैट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का रोम स्टैट्यूट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को डिफाइन कैसे करता है, इसको बता दीजिए। और दूसरा कि चूंकि ऐसी कोई वैश्विक संधि नहीं है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए प्रिवेंट करने के लिए, तो वैसे संधि की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ आपको इवैल्यूएट करना है कि वो कितना आवश्यक है, उसका आपको मूल्यांकन करना है, उसकी आवश्यकता का। ठीक है, तो उसकी आवश्यकता कितनी है ये बात बताना है। ये आपके क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब आंसर का स्ट्रक्चर उसी तरीके से होगा। हम कंटेक्स्ट में क्या करेंगे कि जो स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन में हम कई तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर में हम इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो कि क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट देकर एक कंटेक्स्ट बताया गया है कि देयर इज नो स्पेसिफिक ग्लोबल ट्रीटी एड्रेसिंग क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। देखिए, मैं बार बार इस चीज के ऊपर आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये क्वेश्चन का कंटेक्स्ट होते हैं। जब तक इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आपको अराइज किया गया हो तब तक इसको खुद से इलैबोरेट या डिस्कस या एक्सप्लेन मत कीजिए। दैट इज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हिच आर रेज्ड। नाउ ये जो कंटेक्स्ट है इसको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए, इंट्रोडक्शन में इसको कंटेक्स्ट को फर्दर इलैबोरेट कर दीजिए, ये हम कर सकते हैं। ओके, सो हाउ वी कैन स्टार्ट दिस पर्टिकुलर आंसर। इंट्रोडक्शन में जैसे नो स्पेसिफिक ट्रीटी की बात की गई है,
तो हम ये बता सकते हैं, है ना, नो स्पेसिफिक ट्रीटी। एक तरीका ये हो सकता है, नो स्पेसिफिक ट्रीटी फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, सो लेट अस राइट CAH इन शॉर्ट, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अच्छा, दूसरी चीज है कि हम अभी जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को लेकर जो पूरी दुनिया भर में चर्चा चल रही है उसके विषय में बता सकते हैं, है ना। और क्वेश्चन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के विषय में बात कर रहा है, तो हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बता सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में। अच्छा, तीसरी चीज क्या है कि ये आपसे बात कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की, तो हम क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के जो रिसेंट एग्जांपल्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, है ना, उनको मेंशन करके अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर वेरियस वेज टू स्टार्ट योर आंसर। नाउ व्हाट कैन वी पर्टिकुलरली से विथ रिस्पेक्ट टू देयर इज नो एनी स्पेसिफिक ट्रीटी फॉर प्रिवेंटिंग क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वी नो दैट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रोम स्टैट्यूट। रोम संविधि के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना हुई थी। और रोम स्टैट्यूट कब अडॉप्ट किया गया था? रोम स्टैट्यूट वाज अडॉप्टेड, रोम संविधि को सन 1998 में अडॉप्ट किया गया था। 1998 में अडॉप्ट किया गया और यह 2002 में फोर्स में आया, 2002 में लागू हुआ, और इसके लागू होते ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हो गई। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहां पे स्थित है? यह नीदरलैंड के हेग में स्थित है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ये सब आपको फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अच्छा, तो हम ये बता सकते हैं कि रोम स्टैट्यूट जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को स्टैब्लिश करता है, उसने अन्य प्रकार के अपराधों के लिए, उसके अंतर्गत अन्य प्रकार के अपराधों के लिए आपको इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटी उपलब्ध हैं, जैसे कि जेनोसाइड के अगेंस्ट में, वॉर क्राइम्स के अगेंस्ट में, टॉर्चर के अगेंस्ट में, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के अगेंस्ट में। लेकिन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को प्रिवेंट करने के लिए कोई इंटरनेशनल ट्रीटी आज के समय में उपलब्ध नहीं है। तो हम एक ये दृष्टिकोण दे सकते हैं जो कि आपको क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसके कंटेक्स्ट को फर्दर इलैबोरेट करेगा, ये बात हम बता सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है, आप चाहें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के विषय में आप बता के कि इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रोम स्टैट्यूट इन 2002, कि इसकी रोम संविधि के द्वारा स्थापना हुई और इसका उद्देश्य क्या है कि इट एम्स टू प्रोसिक्यूट दोज हु हैव कमिटेड वॉर अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, टॉर्चर, जेनोसाइड। तो जो इस तरीके के ग्रीवियस जो क्राइम्स हैं उसको कमिट करने वाले लोगों को ये प्रोसिक्यूट करने का काम करता है। सो वी कैन स्टार्ट ऑल्सो विद ICC। हम जानते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके अंतर्गत इसके 124 स्टेट पार्टीज हैं। सो 124 स्टेट पार्टीज हैव रेटिफाइड द रोम स्टैट्यूट। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत ने रोम स्टैट्यूट को साइन नहीं किया है। सो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ, और इंडिया, द ICC डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन ओवर इंडिया। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय का भारत के ऊपर कोई क्षेत्राधिकार या जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि भारत ने रोम स्टैट्यूट को साइन ही नहीं किया है और रोम स्टैट्यूट के द्वारा ही ICC की स्थापना हुई है। तो ICC में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 124 देश इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं और 70 के लगभग देश के ऊपर इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। ओके, सो वी कैन स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, देन वी कैन ऑल्सो highlight the recent incidences with respect to crime against humanity और ICC। जैसे हाल में ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अपराध में सजा सुनाई गई है। ठीक है, हम ये बात बता सकते हैं। या दूसरी चीज कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 2023 में रूसी राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन, उनकी संलिप्तता यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है तो उसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के मामलों में उनके खिलाफ वारंट जारी किया था, अरेस्ट वारंट जारी किया था। तो इन इंटरनेशनल न्यूज को भी हम शामिल करते हुए अपने इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग इंट्रोडक्शन का तरीका है। नाउ दिस elaboration of the context should come in the introduction itself. That is why I am saying that we can go with the first option of introduction, that will be the more specific introduction in context of this question. Now coming to the main body, so the first subpart says
How does the Rome Statute of ICC define crime against humanity? So it is a straightforward question, जहां पर कि आपको अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको उसकी जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है. ठीक है. सो वी विल डायरेक्टली कम विद द सब हेडिंग डेफिनेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. definition of crime against humanity. Definition of crime against humanity under Rome Statute, under Rome Statute of ICC, under Rome Statute of ICC. ठीक है, ये हमने बना दी सब हेडिंग. ओके, नाउ how it has defined it. So crime against humanity as defined under Rome Statute, it says that crime against humanity includes specific criminal acts. So how does Rome Statute define CAH, crime against humanity? So crime against humanity are specific criminal acts. आप इसमें keywords को ध्यान देते जाइए. Specific criminal acts. तो वो specific criminal acts क्या क्या हैं? So it lists down 15 types of criminal acts. 15 type of criminal acts, including, so specific criminal acts 15 types, which includes murder, rape, torture, apartheid, okay, then deportation, persecution, then you have enforced disappearances, imprisonment, sexual slavery, etc. तो इस तरीके के उसमें स्पेसिफिक क्रिमिनल एक्ट्स को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है. अच्छा, फर्दर डेफिनेशन में यह कहा गया है कि दीज स्पेसिफिक क्रिमिनल एक्ट्स when conducted as a part of widespread and targeted attack on a civilian population. Okay, when it is conducted as a part of widespread and targeted attack, widespread and targeted attack on whom? Targeted attack on a civilian population, according to a state or organizational policy, Now you try to understand the definition of crime against humanity provided under the Rome Statute. सबसे पहले तो ये क्या कहता है कि these are specific criminal acts. Crime against humanity are specific criminal acts including 15 types of crimes, जिसमें कि murder, rape, torture, apartheid, deportation, persecution, etc. When these type of specific crimes, they are committed in a manner that is widespread and targeted. That is widespread, मतलब कोई localized नहीं, व्यापक जनसंख्या पर किसी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करता हुआ वाइडस्प्रेड स्पेसिफिक क्रिमिनल एक्ट्स अगर कमिट किया जाता है, कमिटेड एज अ पार्ट ऑफ वाइडस्प्रेड एंड टारगेटेड अटैक ऑन अ सिविलियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू अ स्टेट पॉलिसी और अकॉर्डिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी, मतलब ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों के द्वारा कमिट किया जा सकता है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अंडर रोम स्टैट्यूट. सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन द इंटरनेशनल लॉज. ओके, तो आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं. फाइन, ये बात समझ में आ गई. अगर कोई लोकलाइज्ड अटैक है, रैंडम अटैक है, तो वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं कंसीडर किया जाएगा, इसको ध्यान देना है. अच्छा, दूसरी चीज कि कॉम्बिटेंट्स पर अगर किया गया हो, कॉम्बिटेंट्स पर, तो वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इस फॉर्म में कंसीडर नहीं किया जाएगा, फिर वो वॉर क्राइम के कंटेक्स्ट में कंसीडर किया जाएगा. सो इट मस्ट बी वाइड स्प्रेड एंड टारगेटेड ऑन अ सिविलियन पॉपुलेशन,
ऑन अ सिविलियन पॉपुलेशन। अच्छा, दूसरी चीज कि इट मस्ट बी कैरिड ऑन अकॉर्डिंग टू अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, मतलब या तो सरकार के या फिर किसी संगठन की एक वेल कंसीडर्ड डेलिब्रेट पॉलिसी के अंतर्गत ऐसा कोई वाइड स्प्रेड और टारगेटेड अटैक सिविलियन पॉपुलेशन पे किया जाए यूजिंग दीज स्पेसिफिक क्रिमिनल एक्ट्स दैट विल बी कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अंडर रोम स्टैट्यूट ऑफ आईसीसी। बात समझ में आ गई? जो जो की टर्म्स है उसको आपको ध्यान देना है। अच्छा, व्हाट डज दी क्वेश्चन आस्क इन इट्स नेक्स्ट सब पार्ट? अगले सब पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रोम स्टैट्यूट कैसे डिफाइन करता है ये हमने बता दिया। अब हमें बताना है कि एज देयर इज नो स्पेसिफिक ग्लोबल ट्रीटी, सो इवैल्यूएट द नीड फॉर सच अ ट्रीटी टू प्रिवेंट एंड पनिश दिस क्राइम। ओके, सो नीड ऑफ such treaty, need of such treaty to prevent and punish, need of such treaty to prevent and punish crime against humanity. So we will make this second subheading. Okay, need of such treaty to prevent and punish crime against humanity, and we have to evaluate it. So the first thing is, you see that the number of instances of crime against humanity is increasing throughout the world. Now you see that starting from Asia to Europe to Africa, you will find instances and examples of increasing numbers of crime against humanity committed by both state actors and non-state actors, by insurgent groups. Okay, now if you see examples like Myanmar, under the junta regime, the crime against humanity committed on a section of populations or the entire population. Syria, you take the example of occupied Palestinian territory or Israel. Then you come to the Central African Republic और other African nations, जैसे अगर हम दूसरे अफ्रीकी देशों की बात करें, सूडान, यूथोपिया, है ना, तो अफ्रीका में भी इस तरीके के क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के इंस्टेंसेस पिछले 2-3 साल में काफी देखे गए हैं। यूथोपिया में, आपको सूडान में, है ना, और यूरोप चले जाइए तो वहां पर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के कमिट होने की काफी रिपोर्ट्स आई हैं। सो as we are observing that there is an increasing trend of commitment of crime against humanity by both state and non-state actor, so this brings the most important need for having a global treaty to prevent these crimes. ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वॉर क्राइम तो कवर होता है इंटरनेशनल लॉ में, लेकिन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तो कवर नहीं होता, वो तो सिविलियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट किया गया क्राइम है ना। सो दैट इज व्हाई, सो वी कैन से दैट द नीड given the increasing instances of occurrence या फिर increasing instances of crime against humanity across the world, crime against humanity across the world. अच्छा, दूसरी चीज जो बात है कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ये नॉन कॉम्बैट सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर भी किया जा सकता है ना। तो ये नॉन कॉम्बैट कंफ्लिक्ट सिचुएशन में भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट किया जा सकता है। नॉन कॉम्बैट कंफ्लिक्ट सिचुएशन, जहां पर कि एक्टिव वॉर तो नहीं हो रहा हो पर वहां कंफ्लिक्ट की सिचुएशन बनी हुई हो, तो नॉन कॉम्बैट कंफ्लिक्ट सिचुएशन में भी क्राइम अगेंस्ट कम्युनिटी कमिट किया जा सकता है, जिसको कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज में कवर नहीं किया गया है। एंड नाउ इट इज अ मेजर लूप होल, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज में या फिर आपको जो वॉर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए जो लॉ है, वॉर क्राइम से रिलेटेड लॉज में कवर नहीं किया गया है। सो इट इज एन मेजर लूप होल इन द इंटरनेशनल लॉ। सो चूंकि ये मेजर लूप होल है, इसीलिए इसको रिमूव करना जरूरी है। सो एज इट इज अ मेजर लूप होल और गैप इन इंटरनेशनल लॉ, मेजर लूप होल और गैप, तो हमें इसको क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्यों इसकी आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए है कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी सिविलियन पॉपुलेशन पर आपको कंफ्लिक्ट सिचुएशन में, नॉन कॉम्बैट स्थिति में भी कमिट किया जा सकता है। कहने का यह अर्थ हुआ कि जैसे कोई संघर्ष क्षेत्र है, उस समय वहां पे एक्टिव वॉर नहीं चल रहा, वहां पर युद्ध नहीं हो रहा वास्तविक रूप में, पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है,
तो वैसे कंडीशन में वॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट किया जा सकता है। अब अगर वैसे सिचुएशन में कमिट किया गया है तो उसे युद्ध स्थिति तो मानी नहीं जाएगी, तो वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर एडिक्वेटली कवर नहीं होगा। इसीलिए फिर उसमें जो भी परपेट्रेटर्स हैं, वायलेटर्स हैं, उनको पनिश नहीं किया जा सकेगा अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत। इसीलिए इस अंतरराष्ट्रीय कानूनों में मौजूदा जो ये कमी है, जो गैप है, इसको फिल करने के लिए हमें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को लेकर एक इंटरनेशनल ट्रीटी की आवश्यकता हमें पड़ती है। अच्छा, अब देखिए तीसरी बात यह है कि हम देखें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, सो इट इज नो लेस सीरियस अ क्राइम कंपेयर टू जिनोसाइड और वॉर क्राइम। द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, द सीरियसनेस, क्या ये आपको नरसंहार, जिनोसाइड या अन्य किसी युद्ध अपराध से इसकी गंभीरता कम है? जब जेनोसाइड के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन है, वॉर क्राइम पर इंटरनेशनल कन्वेंशन है, तो देशों को आपस में मिलकर वैश्विक स्तर पर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को प्रिवेंट करने के लिए अवश्य एक अंतरराष्ट्रीय संधि लेकर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इसकी ग्रेविटी है और सीरियसनेस है, ग्रेविटी एंड सीरियसनेस, इट इज नो लेस देन genocide or any war crime. So thereby it is the need to have a global treaty on crime against humanity. Now you see, जब हम मानवता के विरुद्ध अपराधों की बात करते हैं, तो अगर कोई एक ऐसी वैश्विक संधि नहीं होती तो इसको लेकर जो पब्लिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी कमजोर होगी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स भी कम होगा। तो पब्लिक अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए, वैश्विक स्तर पर ऐसे मानवता के विरुद्ध अपराधों के प्रति समझ को बेहतर बनाने के लिए, सरकारों के रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने के लिए, इंटरनेशनल अटेंशन को ज्यादा उस पर डालने के लिए हमें एक अंतरराष्ट्रीय संधि की आवश्यकता है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को प्रिवेंट करने के लिए। तो इस तरीके से आपको अपने पॉइंट्स को फ्रेम करना पड़ेगा, है ना। पब्लिक अंडरस्टैंडिंग की हमने बात की, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, government's response, okay, public understanding, government's response, and to bring international attention on these type of crimes, and to bring more international attention on these type of crimes, we need a global treaty on crime against humanity. अच्छा, ये बात समझ में आई। दूसरी चीज ये है कि अब देखें, जैसे जो अन्य इंटरनेशनल कन्वेंशंस है जिनोसाइड को प्रिवेंट करने के लिए, टॉर्चर को प्रिवेंट करने के लिए, अगर उनके सिग्नेटरी कंट्रीज अपने स्टेट ऑब्लिगेशंस को अपहोल्ड नहीं करते तो और कोई दूसरा तरीका नहीं है उनको अकाउंटेबल बनाने का। सो इफ वी हैव an international treaty on crime against humanity, we can hold such perpetrators, state and non-state perpetrators, to account, and it provides a pathway to prosecute such violators. तो वो बात है। तीसरी चीज क्या है कि जैसे देखिए, अंतरराष्ट्रीय संधि तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को लेकर है नहीं, और अगर इस तरीके की परिस्थितियां पूरी दुनिया में विकसित हो रही हैं तो उन परिस्थितियों को मॉनिटर करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई एक्सपर्ट बॉडी तो है नहीं, क्योंकि कोई संधि ही नहीं है, इसलिए कोई एक्सपर्ट बॉडी भी नहीं है। अगर हम एक वैश्विक संधि करते हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को लेकर, तो फिर उसके बाद एक बॉडी ऑफ एक्सपर्ट जो बनेगी, वो बॉडी ऑफ एक्सपर्ट फिर वैसे अपराधों को इन्वेस्टिगेट भी करेगी और प्रोजिक्यूट करने में भी अपनी भूमिका निभाएगी एंड मॉनिटर भी करेगी। सो मॉनिटरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी सिचुएशन बाय एन अथॉरिटेटिव बॉडी, बाय एन एक्सपर्ट बॉडी, इट कैरीज मोर अथॉरिटी। तो उसका एक अपना अथॉरिटी होता है एंड इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोजिक्यूशन। तो अभी तो कोई वैसी ट्रीटी ही नहीं है। तो हम बात करें कि नीड ऑफ सच अ ट्रीटी किस लिए? टू क्रिएट अ बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स, टू क्रिएट अ बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स। बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स क्या करेंगे? बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स उसको इन्वेस्टिगेट करने में, उसको इंटरप्रेट करने में, टू इंटरप्रेट द सिचुएशन, to interpret the situation, to monitor the situation. Okay, so they will provide their authoritative opinion, and this authoritative opinion will be important for investigating and prosecuting the
and prosecuting the offenders. So that is why we need an international treaty on crime against humanity. So we can proceed likewise. और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए अपनी बात को कह सकते हैं कि देखिए, एट प्रेजेंट देयर इज नो सच ट्रीटी, और जब वैसी ट्रीटी नहीं है तो फिर जो नेशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो भी एब्सेंट हैं. इफ देयर इज सच अ ट्रीटी, व्हाई डू वी नीड सच अ ट्रीटी? दैट अगर वैसी कोई संधि आती है, सो द नेशंस, द सिग्नेटरी नेशंस हु हैव रैटिफाइड, they will be required to incorporate or introduce the elements of the treaty in their domestic laws. तो उनके लिए आवश्यकता यह होगी कि वो अपने घरेलू कानूनों में फिर उस संधि के अनुरूप बदलाव करें, परिवर्तन करें, और उसके बाद जो अन्य मेंबर स्टेट्स हैं ट्रीटी को साइन करने वाले, उनके साथ सहयोग करें. सो देयर विल बी ऑब्लिगेशन ऑन द मेंबर स्टेट्स टू इनकॉर्पोरेट द प्रोविजंस इन देयर डोमेस्टिक लॉज एंड आल्सो कोऑपरेट विद अदर मेंबर स्टेट्स इन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन. तो इससे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को प्रिवेंट करने में सहायता मिलेगी. ओके, सो वी कैन से दैट द सिग्नेटरी नेशंस, वी नीड सच अ ट्रीटी so that the signatory nations, they include provisions, signatory nations, they include provisions of the treaty, they include provisions of the treaty in their domestic legislations, ठीक है. दूसरी चीज कि they cooperate in investigation and prosecution, they cooperate in investigation and prosecution with member nations, with prosecution with अदर सिग्नेटरी नेशंस, जो दूसरे सिग्नेटरी नेशंस हैं उनके साथ भी कोऑपरेट करेंगे. तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी सीक करने में आसानी होगी, अकाउंटेबिलिटी सीक करने में अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. ओके, नाउ अच्छा, दूसरी चीज है कि ये नेशंस को, मेंबर नेशंस को जो ट्रीटी को साइन करेंगे, तो ये नेशनल गवर्नमेंट्स को टूल्स भी प्रोवाइड कराएगा. इट विल आल्सो प्रोवाइड टूल्स, एडिशनल टूल्स टू द नेशनल गवर्नमेंट टू इन्फोर्स एंड सीक अकाउंटेबिलिटी थ्रू देयर कोर्ट्स. तो न्यायालयों के जरिए ये नेशनल गवर्नमेंट्स को भी और एक टूल प्रोवाइड कराएगा ताकि वो ऐसे अपराधों को नियंत्रित करने में और दंडित करने में अपनी भूमिका निभा सकें. ठीक है, अच्छा, उसके आगे हम जैसे बात करते हैं, देखिए, सो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उसको लेकर कोई वैश्विक संधि नहीं होने के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर अकाउंटेबिलिटी भी पुअर है. स्वाभाविक सी बात है, 70 देश के ऊपर आईसीसी का जुरिस्डिक्शन ही नहीं है और उसको लेकर काफी विवाद होता रहता है. इजराइल फिलिस्तीन के भी मामले में काफी इसको लेकर विवाद है. तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ jurisdiction, the countries, they are not able to properly prevent and punish crime against humanity. वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को प्रिवेंट कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं. और इसमें फिर अलग अलग देशों की अपनी अपनी राय भी है. इसको लेकर कंसेंसस भी इवॉल्व कर पाना बड़ा मुश्किल है. तो हमारा क्या प्रयास होना चाहिए? हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि ऐसी एक वैश्विक संधि बने, और ऐसी एक वैश्विक संधि जिसमें कि इस प्रकार के जघन्य मानवता के विरुद्ध अपराधों के रोकथाम के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस हो और उसको लेकर कंसेंसस हो, जो स्टेट, और उसका मैक्सिमम उसके अंदर मेंबर्स हो, मैक्सिमम नेशन स्टेट शुड बी दी मेंबर्स, है ना. तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं. अगर हम इसके संबंध में लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें, सो इन 2019 द इंटरनेशनल लॉ कमीशन, इट प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट of the provisions of a treaty for crime against humanity. International Law Commission, कुछ इसमें institutions की बात आएगी, वो मैं आपको बता दूंगा. So International Law Commission in 2019 it prepared a draft for such a treaty. It prepared a draft and it presented it to United Nations General Assembly 6th Committee. तो ये जो 6th कमिटी है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 6th कमिटी, ये जनरल असेंबली में जो भी लीगल मैटर्स होते हैं, उसको कंसीडर करने का प्राइमरी फोरम है.
So this sixth committee of the United Nations, that is the United Nations General Assembly, that is the primary forum for considering legal matters in the United Nations. And this sixth committee is also mandated with development, and sixth committee is also mandated with development of international law. अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विकास के लिए में भी ये सिक्स्थ कमिटी को मैंडेट है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विकास में सहायता प्रदान करें। ठीक है, तो अभी अब देखिए इसमें मामला क्या है कि 2019 में इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने क्या किया कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पर एक वैश्विक संधि की एक ड्राफ्ट तैयार की, उसको ट्रांसफर किया यूएनजीए सिक्स कमिटी को, और यूएनजीए सिक्स कमिटी ने पिछले साल नवंबर 2024 में एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया। सिक्स कमिटी ने क्या किया कि एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया दैट दे आर गोइंग टू नेगोशिएट द ड्राफ्ट ऑफ द ट्रीटी। सो दैट इज ए वेरी मेजर स्टेप अहेड फॉर कंक्लूडिंग अ ग्लोबल ट्रीटी ऑन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बात आ रही है समझ में? तो नवंबर 2024 में यूएनजीए सिक्स कमिटी ने रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया बाय कंसेंसस दैट इट इज गोइंग टू नेगोशिएट द ड्राफ्ट ट्रीटी फॉर कंक्लूडिंग अ ग्लोबल ट्रीटी फॉर कंक्लूडिंग द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कन्वेंशन। ओके, तो इस तरीके से अच्छा कंक्लूजन में आप ये बात भी कर सकते हैं, है ना, कंक्लूजन में आप जो इसका लेटेस्ट स्टेटस है आप वो भी बता सकते हैं। लेटेस्ट स्टेटस ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रीटी, लेटेस्ट स्टेटस ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रीटी on crime against humanity, on crime against humanity. We can say that the United Nations Sixth Committee, which is responsible for development of international laws, has adopted a resolution for negotiating the draft treaty on crime against humanity. तो इस तरीके से हम अपनी बात को कंक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ये इंटरनेशनल लॉ कमीशन क्या होता है। इंटरनेशनल लॉ कमीशन, सी इंटरनेशनल लॉ कमीशन इट इज ए यूएन बॉडी। इंटरनेशनल लॉ कमीशन क्या है? इट इज ए यूएन बॉडी एंड पर्टिकुलरली यूएनजीए। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनों के विकास और उनके कोडिफिकेशन का कार्य करती है। सो इंटरनेशनल लॉ कमीशन इज अ यूएन बॉडी विच अंडरटेक्स द टास्क ऑफ डेवलपमेंट एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसका चयन कैसे होता है? यूएनजीए के द्वारा इसका चयन होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर्स के द्वारा इसका चयन होता है, और इसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट शामिल होते हैं। सो दिस बॉडी दिस अंडरटेक्स द टास्क ऑफ डेवलपमेंट एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, देन इट ट्रांसफर्स इट टू द यूएनजीए सिक्स कमिटी, देन इट टेक्स इट, देन इट adopts the draft and have a negotiation among the members, and then the draft is finalized in the form of a global treaty. So this is the process. तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं समराइज करते हुए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने मॉक टेस्ट पेपर के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द GS2 टेस्ट पेपर। मल्टी अलाइनमेंट इज एसेंशियल फॉर इंडिया, multi alignment is essential for India to safeguard its interest in an increasingly disordered international system. Increasingly disordered international system. Comment on, now you have to comment on India's continued involvement with the BRICS grouping despite the complexities of its expansion. Now you have to answer into 50 words, 15 marks. हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। भारत के लिए तेजी से अव्यवस्थित हो रही अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अपने हितों की रक्षा के लिए बहुसंरेखन आवश्यक है। मल्टी अलाइनमेंट, बहुसंरेखन। ब्रिक्स समूह के विस्तार की जटिलताओं के बावजूद इसके साथ भारत की निरंतर भागीदारी पर टिप्पणी कीजिए। तो प्रश्न क्या है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत तेजी से अव्यवस्थित हो रही हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, और ऐसी परिस्थिति में मल्टी अलाइनमेंट भारत के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्रिक्स समूह के विस्तार के साथ जटिलताएं आती हैं, उन जटिलताओं के बावजूद भारत की निरंतर भागीदारी इसमें, इस पर आपको टिप्पणी करना है कि ब्रिक्स
लगातार विस्तार हो रहा है और उसके साथ विस्तार की जटिलताएं आ रही हैं। इसके बावजूद भारत की इसमें निरंतर भागीदारी के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, नाउ आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। यू हैव टू कमेंट। कमेंट का मतलब होता है यू हैव टू प्रोवाइड योर व्यूज, मीन्स यू हैव टू गिव योर ओन व्यूज, प्रोवाइड योर व्यूज। The views should not be of any committee, of any other, recommendation, but you have to mention your understanding. What do you understand and what do you think about the particular issue? Now, how to introduce? अपने आंसर को हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? क्वेश्चन का थीम क्या चीज पे है? एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉम्प्लेक्स एंड एनालिटिकल। लेट मी से, अंतरराष्ट्रीय संबंध में इस तरीके के प्रश्न आपके मल्टीपल कंसेप्ट्स को चेक करते हैं और फिर एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, जैसे यहाँ पे ब्रिक्स की बात हो रही है, तो ब्रिक्स के कंटेक्स्ट में फिर आपकी स्पेसिफिक नॉलेज को भी टेस्ट करते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मोर एनालिटिकल एंड यू मस्ट बी रेडी। आपको तैयार रहना है ऐसे प्रश्नों को आंसर करने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें यह जानना जरूरी है पहले, आंसर में आने से पहले, कि क्वेश्चन का थीम क्या है। नाउ द क्वेश्चन इट इंक्लूड्स सम की टर्म्स लाइक मल्टी अलाइनमेंट, ओके, मल्टी अलाइनमेंट, देन इट टॉक्स अबाउट ब्रिक्स ग्रुपिंग। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो मेंशनिंग डिसऑर्डर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ओके। सो द मेन थीम इज इट इज टॉकिंग अबाउट मल्टी अलाइनमेंट and multilateral organizations. So BRICS, we know it is a multilateral organization, and the theme of the question is multilateral organizations and somewhere their role in an disordered international system. प्रश्न का थीम ये आ गया समझ में? ये क्या कह रहा है कि एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, मल्टी अलाइनमेंट एज ए प्रिंसिपल की बात कर रहा है और डिसऑर्डर्ड इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन का मेन आइडिया क्या है कि एक मल्टी लैटरल ग्रुपिंग के साथ कांस्टेंट एसोसिएशन, एक मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच अपनाते हुए भारत इस ये जो डिसऑर्डर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें कैसे आगे बढ़ रहा है, उसी पर हमें टिप्पणी करनी है, ठीक। नाउ वी कैन इंट्रोड्यूस विथ द टर्म मल्टी अलाइनमेंट, ओके, वी कैन इंट्रोड्यूस विद द टर्म मल्टी अलाइनमेंट। एट द सेम टाइम वी कैन इंट्रोड्यूस विथ अ brief description of the BRICS grouping, and the third thing we can also introduce with a disordered international system. Disordered international system primarily due to the responses or the policies of United States towards its allies and other nations. So disordered international system as well as various conflicts going on across the world, तो अब मल्टी अलाइनमेंट से अगर हम अपने आंसर को शुरू करते हैं, बहुसंरेखन, मल्टी अलाइनमेंट, सो इट इज ए स्ट्रैटेजी, मल्टी अलाइनमेंट इज ए स्ट्रैटेजी विच इज एट प्रेजेंट रिफ्लेक्टेड इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। मल्टी अलाइनमेंट जैसा टर्म से ही स्पष्ट है, इट मीन्स मल्टीपल अलाइनमेंट्स और मल्टीपल एसोसिएशंस। सो इट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ ब्रॉडनिंग योर अलायंसेस, डेवलपिंग मल्टीपल पार्टनरशिप्स across various global powers, अलग अलग जो ग्लोबल पावर्स हैं, रीजनल पावर्स हैं, उनके साथ अपने अलायंसेस को ब्रोडेन करने की रणनीति मल्टी अलाइनमेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आपसी हितों को, आपसी अवसरों को बढ़ाना, टू मैक्सिमाइज म्यूचुअल अपॉर्चुनिटीज, और जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं उसको कम करना। क्योंकि आपस में जब ग्लोबल पावर्स के बीच में कोलैबोरेशन, कनेक्शन, पार्टनरशिप जब बढ़ती है तो जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होते हैं। अच्छा, नाउ दिस मल्टी अलाइनमेंट दैट इज फ्री ऑफ एनी टाइप ऑफ आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, किसी प्रकार के विचारधारा संबंधित बाधाओं से ये मुक्त होता है। ओके, सो वी कैन provide a concise definition of multi-alignment, that it is a strategy to broaden alliances with global powers irrespective of ideological constraints with the aim to increase opportunities and reduce geopolitical risk। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम ब्रिक्स के विषय में बता दें। We know that the first summit level meeting of BRICS grouping, the BRIC grouping in fact was held in 2009 in Yekaterinburg, Russia। Okay, so initially the four emerging economies of Brazil, Russia, India and China
they had come together, they were emerging economies, they had similar kind of challenges, and the major challenge was that the international institutions were dominated by the western nations. तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर, संस्थानों पर, खासकर जो पश्चिमी देशों का प्रभुत्व था, इससे चुनौतियां उभरती अर्थव्यवस्थाओं को आ रही थी. और जिम ओनिल, an economist, he coined the term BRIC. The term BRIC is not coined by the member nations. So after the inclusion of South Africa, the BRIC became BRICS. And now, and then, so there were 5 members. Now last year in October 2024, when there was the BRICS summit meeting in Kazan, Russia. रसिया के कजान में जब पिछले साल 2024 में ब्रिक्स की शिखर सम्मेलन हुई, तो ब्रिक्स में 4 अन्य सदस्यों को शामिल किया गया. कौन कौन से देश थे? इथोपिया, इजिप्ट, ईरान एंड यूनाइटेड अरब अमीरात. सो नाउ द मेंबरशिप इट बिकेम 5 + 4 दैट इज 9. कौन कौन से 4 नेशन जुड़े in the last year in Kazan, Russia? So they were Ethiopia, Egypt, Iran and UAE. Now in January 2025, Indonesia joined as the 10th member. Now you see the group was expanding. Why I am telling this? As the question mentions the complexities of expansion. ठीक है. अब जब 2025 में इंडोनेशिया 10th member के रूप में जुड़ा, and recently Saudi Arabia has joined as the 11th member. So at present there are 11 members of BRICS grouping. They are the original 4 members, South Africa, then the later 4 who joined in 2024, followed by Indonesia and Saudi Arabia. Okay, so you can give a brief description of BRICS, that the first summit meeting of BRICS grouping in 2009, it expanded with 4 more members in 2024, followed by Indonesia and Saudi Arabia. So total membership of 11 nations. So we can write BRICS is a multilateral grouping of 11 nations, starting originally with 4 members and expanding in the course of time. इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. दूसरी बात है कि डिसऑर्डर्ड इंटरनेशनल सिस्टम बता सकते हैं, जैसा मैंने आपको चर्चा किया कि अनप्रेडिक्टेबल यूएस पॉलिसीज है ना, अनप्रेडिक्टेबल यूएस पॉलिसीज, एट टाइम्स दे आर थ्रेटनिंग, एट टाइम्स ओके, सो दे आर थ्रेटनिंग पॉलिसीज ऑल्सो, प्रोटेक्शनिज्म, आइसोलेशनिज्म है ना, so protectionism being followed at the government level. So the United States, it is following unpredictable policies, threatening nations with tariffs. At the same time, we see that there are wars going on, particularly conflicts. We can say the Russia-Ukraine conflict and the conflict between Israel and Palestine. So all these, they produce a disordered international system, and in that the policy of multi-alignment is very fruitful. Now the question is that we will explain the context, this first statement, that is the context in the introduction, then we will come on to the main demand of the question, that is India's continued involvement with the BRICS grouping despite complexities of expansion. Now see, we will form the subheading India's involvement with BRICS, India's involvement with BRICS, India's involvement with BRICS despite complexities of its expansion, despite complexities of its expansion. Okay. But we have to keep in mind 2 things that were the core, ideas in the question, that is multi-alignment. We have to at the same time keep in mind the key aspects, that is multi-alignment, and the second thing is disordered international system. Disordered international system. Disordered international system is a threat to multilateralism. Disordered international system. That is why this question it involves multiple concepts. इसलिए इसमें कई सारे concepts एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जो मैंने अव्यवस्थित अंतरराष्ट्रीय स्थिति की बात की, वो कहीं ना कहीं बहुपक्षता या बहुपक्षीयता के विपरीत जाता है ना, और ब्रिक्स क्या है, वो एक बहुपक्षीय संगठन है. Now, the first thing you see that in context of India's foreign policy, we have adopted a stance of मल्टी अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. हम लोगों ने मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपने विदेश नीति में शामिल किया है, और हमारी जो विदेश नीति के दृष्टिकोण से 2 महत्वपूर्ण बातें हैं.
एक तो कि इंडो पैसिफिक और दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ. नाउ दीज टू एट टाइम्स अपीयर टू बी हैविंग कॉन्ट्रडिक्टरी गोल्स. अब एक तरफ तो इंडो पैसिफिक है जिसके ऊपर की यूनाइटेड स्टेट्स एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से काम कर रहा है. इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यूनाइटेड स्टेट्स ने 2022 में बनाया है ना, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा अन्य जो इंडो पैसिफिक रीजन के नेशंस हैं वो उसमें शामिल है ना. दूसरी तरफ उसके पहले क्वाड की स्थापना की गई थी जिसमें भारत भी शामिल था, यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. नाउ on the one side India is partners with United States when it comes to the institutional system with respect to Indo-Pacific. एक तरफ तो हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात हुई जहां भारत यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर साझेदारी कर रहा है, और दूसरी तरफ ठीक आप देखें तो रसिया एंड चाइना, दोज हु कंसीडर टू बी कॉम्पिटिटर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एट द ग्लोबल लेवल, दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे देशों के साथ मिलकर एक आपको ब्रिक्स के स्तर पर ग्लोबल साउथ के इशूज को, ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ा रहा है. तो अब यहां पर जो इंडो पैसिफिक, और अब यहां पर आप देखें कि इंडो पैसिफिक एक तरफ है और दूसरी तरफ है ग्लोबल साउथ, दूसरी तरफ है ग्लोबल साउथ. और ग्लोबल साउथ में भी आपको जैसे आप देखेंगे कि ग्रुपिंग्स लाइक ब्रिक्स who tend to advocate the interest of the global south. अब इसमें आपको चाइना जैसे भी मेंबर शामिल हैं जिससे कि अभी रिसेंटली ही इंडिया कन्फ्लिक्ट भी हुआ है, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट भी हुआ है. नाउ इंडिया प्लेसेस इटसेल्फ बिटवीन these two and it practices the policy of multi alignment, multi alignment means having multiple partners at the same time, having parallel relationships at the same time, okay, to maximize the geopolitical opportunities and reducing the risk. अब यहां पर देखिए बात क्या है कि ब्रिक्स क्या करता है. भारत की ब्रिक्स में जो सहभागिता है वह क्या करती है, वह एक तरीके से भारत को जो उसके विदेश नीति में दो प्रमुख मुद्दे हैं उसके बीच में मल्टी अलाइनमेंट को संतुलित करने में, मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में सहायता करती है. तो इसीलिए ब्रिक्स का भले ही विस्तार हो रहा हो, ब्रिक्स का एक तरफ से विस्तार हो रहा है, अगर आप देखें ब्रिक्स का जितना विस्तार होगा उतना इंडो पैसिफिक के साथ ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को बैलेंस करने में भारत का ही हित सधेगा. तो इसीलिए इंडिया इज कंटिन्यूइंग इट्स इन्वॉल्वमेंट विद ब्रिक्स डिस्पाइट द एक्सपेंशन फॉर अ बैलेंस बिटवीन द इंडो पैसिफिक एंड द ग्लोबल साउथ. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ यू सी द नेक्स्ट थिंग. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इंडिया ऑल्सो प्लेसेस इटसेल्फ एज द advocate or the leader. India also places itself as the leader of the global south, leader of the global south. तो अगर भारत अपने आप को ग्लोबल साउथ के एक नेता के रूप में देखता है, एक लीडर के रूप में देखता है, तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ना जिसमें कि वो लीडरशिप कंसोलिडेट हो सके. तो भारत का जो दृष्टिकोण ब्रिक्स को लेकर है कि अगर इसकी मेंबरशिप एक्सपैंड होती है उसकी चुनौतियां आएंगी. उसकी चुनौतियां इस तरीके से आएंगी क्योंकि जो ब्रिक्स की मेंबरशिप एक्सपैंड हो रही है इसमें आपको मिडिल पावर्स, जो रीजनल पावर्स हैं, दे आर कमिंग इनटू द ब्रिक्स फोल्ड. मिडिल पावर्स की मैं बात करूं तो जैसे ईरान, सऊदी अरेबिया, दे आर द रीजनल पावर्स आल्सो. सो व्हेन दे कम इनटू द ब्रिक्स फोल्ड इट इज नॉट क्लियर दैट व्हाट इज देयर एस्पिरेशन और व्हाट इज देयर एम्बिशन ऑफ कमिंग इनटू ब्रिक्स. ये हमें नहीं पता. तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है. अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो न्यू मेंबर आ रहे हैं उसमें मिडिल और रीजनल पावर्स हैं और हमें नहीं पता कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रिक्स में ज्वाइन करने का या फिर उनके एस्पिरेशंस क्या हैं. ओके, लेकिन इतना जरूर पता है कि एज दीज नेशंस दे आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, दे हैव देयर and we have similar developmental challenges, we have civilizational links with those nations, we have our sizable diaspora in Saudi Arabia, there are Indians who are working there. With Iran we have deep historical and cultural ties, civilizational ties. So we have a common set of, we share a common set of
common set of problem. So with that perspective, when India places itself as the leader of the global south, it finds BRICS to be a very suitable platform for this consolidation of role. तो भारत क्या है कि ब्रिक्स में वह प्लेटफॉर्म, ब्रिक्स के रूप में वह प्लेटफॉर्म को देखता है जहां पर कि वो ग्लोबल साउथ के एक नेता के रूप में अपने आप को प्लेस कर सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द इंक्रीजिंग मेंबरशिप इज प्रेजेंटिंग इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. एक तरफ सदस्यता बढ़ रही है तो जटिलता बढ़ रही है. किसके क्या उद्देश्य हैं, किसके क्या अपेक्षाएं हैं, पता नहीं. कौन सा देश किस उद्देश्य से शामिल हो रहा है. एंड दे आर मिडिल नेशंस, रीजनल नेशंस. पर भारत को अपने आप को एक वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ के एक नेता के रूप में स्थापित होने में ब्रिक्स की भूमिका है. इसलिए ये अपने आप को कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट भारत की इससे जुड़ी हुई. अच्छा, तीसरी बात यह है कि अमेरिका की जो व्यापार नीतियां हैं, द ट्रेड पॉलिसीज, द रिटेलिएटरी tariff threats from the United States and a kind of trade protectionism, जो व्यापार सुरक्षा की नीति है ना, जो इस तरीके से प्रोटेक्शनिज्म की नीति है, इससे एक अनसर्टेन ट्रेड एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है. सी वी हैव टू आल्सो कीप इन माइंड व्हाट द क्वेश्चन सेज, अ डिसऑर्डर्ड इंटरनेशनल सिस्टम. तो इससे एक अस्थिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थिति पैदा हुई. अब इसमें भारत को भी आवश्यकता है कि वह अपनी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और बढ़ाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था के माध्यम से अन्य देशों से ज्यादा जुड़े. तो वैसे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन सभी ब्रिक्स के रूप में भारत को संभावना दिखती है. क्योंकि यदि हम बात करें तो ब्रिक्स में, सो दिस ब्रिक्स और नाउ यू कैन से द ब्रिक्स प्लस with its expanded members. So BRICS, it covers about 45% of the global population. 45% of the global population. At the same time, the BRICS nations, they combine together 35% of global GDP. 35% of global GDP. Now you see that why India has a continuing involvement with BRICS. It has its own strategic interest also. So if we are connected with 45% of the global population and if we create a consensus, then we can also lay more claim on the UNSC permanent membership. एक तो ये बात हो गया कि जो ब्रिक्स नेशन है उसमें भारत एक इस तरीके से एडवोकेसी करके और अपने क्लेम को असर्ट करके एज एन एमर्जिंग ग्लोबल पावर, so it will help us in this strategic goal. दूसरी तरफ जो 35% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, इसके साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अचीव करके एज द इंटरनेशनल सिस्टम इज बिकमिंग मोर एंड मोर, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था क्या हो रही है, ज्यादा से ज्यादा अस्थिर हो रही है, जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति है. ये बात हो गई. अच्छा, उसके बाद देखिए मामला ये आता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रिक्स एक ऐसे बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया है जिसने कि इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है. ब्रिक्स का अगर आप देखेंगे सो 2014 में कंटिंजेंट रिजर्व आपको एक स्थापित CRA स्थापित किया गया था. सो कंटिंजेंट रिजर्व एडजस्टमेंट अरेंजमेंट CRA एस्टैब्लिश किया गया था. तो CRA was with initial funding of $100 billion established in 2014. Now you have the New Development Bank, the NDB, or also termed as the BRICS Bank in 2015 with the initial subscribed capitalization of $50 billion. So BRICS में इंटरगवर्नमेंटल कोऑपरेशन के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जो कि भारत जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए और जो भी इसमें नए मेंबर्स फोल्ड में शामिल हो रहे हैं उनके लिए काफी सहायक है. अच्छा, नाउ वी कैन राइट दिस थिंग्स. सो इंडियाज कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट विद ब्रिक्स एज दिस मल्टीलैटरल ग्रुपिंग, इट क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ intergovernmental institutions. It created a network of institutions for intergovernmental cooperation. सरकारों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स के अंतर्गत ऐसे इंटरगवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए गए. जैसे मैंने आपको बात किया CRA की, कंटिंजेंट रिजर्व
arrangement that is of $100 billion established in 2015, and the new development bank, the BRICS bank, with $50 billion initial subscribed capitalization. अच्छा, इसके अलावा भी अब इसमें क्या है कि जितने भी देश शामिल होंगे तो उससे फिर ये दोनों व्यवस्थाएं और मजबूत होंगी, सीआरए भी और मजबूत होगा, एनडीबी भी और मजबूत होगी. इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटीज तो अपनी जगह पर है, लेकिन इससे भारत को जो लाभ हो रहा है या होने वाला है उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए कंटिन्यूड एंगेजमेंट की बात करनी होगी. उसके बाद अगर हम बात करें, नाउ यू सी दैट नॉट ओनली दीज इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स बट BRICS has also provided opportunity for India with respect to minilaterals. अब BRICS ने क्या किया है कि इंस्टीट्यूशनल तो सिस्टम उसने एस्टेब्लिश किया ही, लेकिन इसके अलावा BRICS के अंतर्गत मिनीलैटरल्स के भी नेटवर्क स्थापित किए गए, ट्रांसनेशनल पार्टनरशिप्स की व्यवस्था की गई और वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए ओवर एरियाज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट. ठीक है, तो BRICS also created a network of minilaterals, a network of minilaterals. Minilaterals अब किसे कहते हैं? मल्टीलैटरल तो हमने सुना है, प्लूरीलैटरल भी सुना है. मिनीलैटरल क्या होता है? मिनीलैटरल मतलब 3-4 देशों का छोटा छोटा समूह. मिनीलैटरल्स 2 से अधिक देशों का, जैसे 3-4 देशों का छोटा छोटा समूह जो कि आपस में मिलकर साझेदारी करता है और एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध को बेहतर बनाता है. So they are minilaterals, and minilaterals particularly they are focused over few issues rather than a range of issues. Okay, so this network of minilaterals. और उसके बाद फिर ब्रिक्स के अंतर्गत हमने बात की ट्रांसनेशनल पार्टनरशिप्स की. ट्रांसनेशनल पार्टनरशिप्स जैसे ब्रिक्स क्या कर रहा है कि और दूसरे फिर जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है, और दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है. और इसके अतिरिक्त जैसे मैंने बताया कि जो शेयर्ड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, शेयर्ड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि क्लाइमेट चेंज. ग्लोबल साउथ में शेयर्ड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है? क्लाइमेट चेंज है. उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी है. एनर्जी सिक्योरिटी, यहां पर आपको ये डेटा जानना जरूरी है कि 30% ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन इज थ्रू ब्रिक्स नेशंस. 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन इज बाय ब्रिक्स नेशंस. तो एनर्जी सिक्योरिटी की बात हम करेंगे. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हम बात करेंगे. एज वी नो दैट द वेस्ट, पश्चिम के जो देश हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में रिलेक्टेंट होते हैं. दे आर रिलेक्टेंट टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू द नेशंस ऑफ ग्लोबल साउथ. तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हुई, हेल्थ की बात हुई. मीन्स ओवर दीज एरियाज ऑफ इंटरेस्ट there are working groups also functional under the BRICS mechanism, under the BRICS platform. तो इसीलिए भारत के लिए जो कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट की बात है वो इसलिए आवश्यक होती है, डिस्पाइट दैट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंडक्टिंग न्यू मेंबर्स विद इन द ग्रुपिंग, इट इंक्रीजेज विथ मोर नंबर ऑफ मेंबर्स. लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे तो उसका फायदा भी तो है कि आप ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे शेयर्ड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पे काम कर रहे हो. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. अच्छा, दूसरी चीज है कि ये ग्रुप हेट्रोजेनस है. द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज व्हाई इंडिया इज एंगेजमेंट, कंटिन्यूड एंगेजमेंट एट द लेवल ऑफ ब्रिक्स, दैट दिस ग्रुपिंग इज ए हेट्रोजेनस ग्रुप. अलग अलग तरीके के, अफ्रीका के, एशिया के, अलग अलग तरीके, अलग अलग आप देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स के इसमें मेंबर, साउथ अमेरिका के, आपके इसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट के मेंबर शामिल हैं. सो व्हाट इट डज, इट प्रोवाइड्स अ ग्लोबल वॉइस, इट प्रोवाइड्स अ ग्लोबल वॉइस टू द डेवलपिंग कंट्रीज एज ए काउंटर टू द डोमिनेशन ऑफ वेस्ट. तो आप देखिए कि शुरुआत भी इसी चीज पर हुई थी कि पश्चिम देशों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों पर एक तरीके से उनका जो डोमिनेशन है उसको काउंटर करने का प्रयास किया गया था. अभी भी ऐसी बात की जाती है कि ब्रिक्स नेशन दे वांट टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन यूएस करेंसी. तो डॉलर के ऊपर वो अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं. ठीक है, तो भारत के लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि एक ऐसे तेजी से बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अब हमें भी कोई एक ऐसा मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर कि हम ग्लोबल साउथ के साथ आकर बातचीत कर सकें. ओके,
अब देखिए, चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंडक्टिंग न्यू मेंबर्स, अब नए सदस्यों के आने से बात क्या होती है कि ग्रुप हेट्रोजिनस बन जाता है। कॉम्प्लेक्सिटीज क्या आती है कि जो नए सदस्य हैं उनके बीच में इशूज को लेकर डिवीजन भी हो सकता है। जैसे ब्रिक्स में हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशन को लेकर एक इंटरनल रिफ्ट रहा है, रसिया का हो या चाइना का हो या भारत का हो। इनफैक्ट with the leadership change in Brazil, the Brazil United States relation has also got disturbed. तो इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर एक इंटरनल डिवीजन है, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर इंटरनल डिवीजन है। तो जितने नए नए मेंबर्स आएंगे उतना ज्यादा ये डिवीजन बढ़ेगा। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि इससे मल्टीलैटरलिज्म भी प्रभावित होगा। नए नए सदस्य आएंगे, इंटरनल डिविजन्स ग्रुप में बढ़ेगी, फिर G20 और यूनाइटेड नेशंस के भी लेवल पे मल्टीलैटरलिज्म को थ्रेट हो सकता है। लेकिन भारत के लिए कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी है? भारत के लिए कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि रसिया जैसे ग्लोबल पावर्स या मेजर नेशंस ब्रिक्स का मेंबर हैं और भारत की रसिया के साथ टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, फ्रेंडशिप ट्रीटी है रसिया के साथ, एंड रसिया हैज बीन अ रिलायबल एंड डिपेंडेबल पार्टनर ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम वी हैव चाइना एज अ पावरफुल नेशन इन द ब्रिक्स ग्रुपिंग वेयर वी गेट द अपॉर्चुनिटी, जहां पर भारत को यह अवसर मिलता है कि वो चाइना को काउंटरएक्ट कर सकता हो। तो कोई एक ऐसा तो मान लीजिए मंच चाहिए जहां पर कि चाइना जैसे देश को काउंटरएक्ट करने के लिए भारत को अपॉर्चुनिटी मिले। सो ब्रिक्स इज दैट प्लेटफॉर्म। दैट इज व्हाई डिस्पाइट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ऑल दीज न्यू नेशंस कमिंग, नए देश आएंगे, उससे आंतरिक जो मतभेद है विषयों पर, मुद्दों पर, वो ब्रिक्स के अंतर्गत बढ़ेगा। लेकिन भारत को रूस के साथ अपनी सामरिक संबंध को मजबूत करने में और चीन को एक काउंटरवेट के रूप में वो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकता है। दैट इज व्हाई वी आर हैविंग अ कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट इन द ब्रिक्स ग्रुपिंग। तो इस तरीके से हम अपनी बिंदु को, अब देखिए हर बिंदु को आपको प्रश्न से जोड़ना है और ध्यान देना है कि हर बात आपकी कमेंट के रूप में लिखी होनी चाहिए, आपकी अपनी राय के रूप में लिखी होनी चाहिए। हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन वी राइट एज द कंक्लूजन? कंक्लूजन में हम ये बात कह सकते हैं, अभी जो रिसेंट में ब्रिक्स समिट हुई है ऑन 6th and 7th of July 2025, so the latest BRICS summit meeting was organized in Rio de Janeiro, Brazil, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया था, भाग लिया था। एंड इन दैट समिट मीटिंग इस चीज के ऊपर फोकस था, जो ब्रिक्स का फोकस था कि ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स कैसे लाए जाएं। तो वो भारत के मल्टी अलाइनमेंट के ही हित में है। हम तो हमेशा मल्टीलैटरलिज्म के पक्ष में रहे हैं। तो एक तरीके से ये हमारे मल्टी अलाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव को ही प्रमोट करता है। पहली बात, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स दैट इज इन ट्यून विथ इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट एंड मल्टीलैटरल एफर्ट्स, पहली चीज। और दूसरा चीज कि ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन के ऊपर भी ब्रिक्स का फोकस इस समिट मीटिंग में था। सो दैट इज ऑल्सो इन आवर फेवर, एज India has always seen itself as the leader of the global south. So in the conclusion we can write that in the latest BRICS summit, the focus of the grouping was on greater governance reforms and enhancing global south cooperation. Both of these elements are in tune with India's multi alignment and multilateral efforts. तो इस तरीके से हम अपनी बात को इसमें समाप्त कर सकते हैं। तो ये थी हमारी चर्चा हमारे यूपीएससी जीएस पेपर 2 के क्वेश्चंस के डिस्कशन की, और हम शीघ्र ही आपके लिए और सभी जीएस पेपर्स के डिस्कशन को लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।